Good evening, Parth sir. जय हिंद गौरव सर. Very good evening. सर एक 5 मिनट सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. बस हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को. कैसे हैं गौरव सर? बढ़िया सर. हाँ पार्थ सर, तो फर्स्ट 15 मिनट्स में गौरव सर का वाइवा रहेगा. फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स प्लीज गाइड कीजिएगा कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन किए गए थे एट द टाइम ऑफ पेटेंट एजेंट इंटरव्यू. एंड लास्ट 15 मिनट्स में सभी लोग अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो आपसे पूछेंगे. तो इन दैट मैनर इट विल प्रोसीड. Okay, पार्थ सर, okay. आर यू देयर? Hello everyone. जी मैडम, जय हिंद मैडम. Jai Hind sir. आई थिंक सर, पार्थ सर, हम इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू जिनका है वो आ गए हैं, तो हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. एंड मीनवाइल द कैंडिडेट्स विल ज्वाइन बाय देमसेल्व्स. करेक्ट पार्थ सर? Yes, Gaurav Kumar, are you there? Yes sir. गौरव जी. Yes. Today we are having the mock interview of yours for the patent agent, right? So, just introduce yourself. Jai Hind sir. My name is Gaurav Kumar. I am from Amroha, UP, and I done my MSc in organic chemistry in 2019, and then You can open your video. Yeah. Sorry, I think okay, you are there. Sorry. Yes. yes sir, I done my MSc in chemistry 2019, and currently working in Innodata India Private Limited last 6 years. Here we got work from the client Elsevier, and we working on patent and journals. Here we extract data from the patent, whichever he after the grant we got the patent, and we extract relevant data from the patent, Chinese, Japanese, and English patent also. And we accept Marcos compound and 3D 2D structures according to the company guideline. That is our work. Okay. So you do patent analysis and do the work. Okay. What I understand. Yes sir. So why do you want to become patent agent? Sir, here we working on patent. So I read about the Indian Patent Act. What is the procedure in India for the filing patent? We working after the publication of the patent, but what is the pre-filing in the India? So I preparing for the patent agent exam. I don't feel any relevance with being patent agent and your work profile. How will being a patent agent help you in your work profile?
No, sir, this is not related to my work profile. Then why you want to become a patent agent? Sir, this no, sir. वही उसको मैजिक टच नहीं दी है अब देखो ना खाना Setal ma'am, can you mute yourself? पटक के जाते रहो ना, खाए तो खाए, नहीं तो नहीं खाए। Gaurav ji, Yes, sir. yeah. So why you want to become patent agent? Sir, I interested in for filing and procedure in the patent filing stage. So I start preparing for the patent agent exam. Okay. What are the forms required for filing a patent? Sir, Form 1, Form 2, Form 3, Form 5, and Form 5 और Form 26 भी कर सकते हैं. You are from Uttar Pradesh, right? Yes, sir. UP. So is there any government scheme related to IP filing support or IP filing or anything? Do you know? No, sir. I don't know. Is there any or you don't know? I don't know. Okay. Okay. What are the different IPs? What are the different IP acts? Indian Patent Act 1970, the Okay. Copyright Act 2000, and the Trademark Act, or the Design Act 2000. Okay. These are the acts. Any other acts? Cool. Is No, there sir, any Plant Variety and Farmers Protection Act? Yes, sir. Then semiconductor. Semiconductor. हाँ, sir, semiconductor. Okay. Do you know any GIs from your region? Yes, sir. GI टैग सर हमारे अमरोहा में ढोलक को मिला हुआ है, जो अमरोहा की ढोलक. कौन से ढोलक? ढोलक जो बजाने वाले. Which place? Origin? अमरोहा. Amroha ढोलक. Yes, sir. Okay. So do you know under which ministry this IP office comes? Sir, DPIIT. That is a department above which there is one ministry. Sir, Okay. What are the Right. different offices, registries of patent, and which are Sir, where they Delhi, are located? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. Okay. And any other places? नो सर, इंडिया में 4 ही है पेटेंट ऑफिस. Okay. Is there any registry in Ahmedabad? नो सर. There is one registry in Ahmedabad, that is trademark registry. Okay. Who is current controller general, CGPT, PDTM? प्रोफेसर उन्नत पंडित जी. Okay, good. What will be the different work that you can do as being a patent agent? Sir, we practice before the controller. We filing the stage, we filing the patent, but not give the scientific advice to the client. Okay. Yes, sir. The only one thing you can do, that is filing the patent. Anything else you can do as a patent agent? Sir,
वी हियरिंग अटेंड कर सकते हैं कंट्रोलर के सामने। ओके, हियरिंग के बाद कितने दिन बाद रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है? विद इन हाउ मेनी डेज? सर नॉट श्योर। ओके, पेटेंट पब्लिश हो जाने के बाद कितना महीना रहता है फॉर प्री ग्रांट ओपोजिशन? सर प्री ग्रांट अपोजिशन पब्लिकेशन के बाद कर सकते हैं हम। नहीं, किसके पहले? रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल होनी चाहिए तब कर सकते हैं। ओके, हाउ डू यू केम टू नो अबाउट पेटेंट एजेंट? सॉरी सर। आपको पेटेंट एजेंट ऐसा होता है वो कहाँ से पता चला? सर मेरे भैया हैं, वो जो सीनियर्स हैं वो कर रहे हैं इसी काम को। ही इज ऑलरेडी अ पेटेंट एजेंट? नो सर, बट they filled in drafting and FAR fields, not a Okay, current repetitive. so are advocate eligible to file a patent being an having a BCI No sir, certificate? no Okay, sir, advocate not eligible. so being a patent agent gives you the rights to file trademark? I think no sir, because a separate examination will take trademark exam. Okay, so can advocate act as a trademark agent or he can file trademark? Not sure sir. Okay, so इंटरनेशनल फाइलिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है एंड कौन सी ट्रीटी के थ्रू इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग हो सकता है? सर पीसीटी के थ्रू और कन्वेंशनल रूट। पीसीटी का फुल फॉर्म? पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। ओके, अभी तक आपने जो लैंडस्केपिंग किया है कितने पेटेंट्स आप रीड करते हो हर रोज के? Sir, this it depend on the per patent page length. Average 3 to 4, और जो ज्यादा बड़े पेटेंट होते हैं उसमें 2 से 3 दिन या 4 दिन में लग जाते हैं। ओके, हाउ विल यू गाइड योर क्लाइंट बीइंग ए पेटेंट एजेंट कि आपका क्लाइंट का कोई पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, he is already working on his patent, और कोई दूसरी कंपनी या कोई another person is copying that product, then what will be your suggestions and the further steps for your client? Sir, this is granted patent. Yeah, granted patent. uh, Company X is owing a patent. They are already manufacturing that item. They are already into market, and some other company Y is copying that product, and they are also into the market. Then your client comes to you, company X comes to you, and says that company Y is already copying my product. Then what should we do? Sir, according to section 48 of the Indian Patent Act, the patentee can मेकिंग रोक सकता है मेकिंग बनाने से या उसको। गिव प्रैक्टिकल आंसर। आप उनको क्या बोलेंगे? मेरे पास कोई पेटेंट है, मैं मार्केट में ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, किसी और ने भी सेम प्रोडक्ट मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है, यू गाइड मी कि मुझे अब क्या करना चाहिए? सर इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकते हैं। कहाँ फाइल कर सकते हैं? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हु विल फाइल? पेटेंटी और पर्सन मैं फाइल करूँ? लाइसेंसी। मैं फाइल करूँ या आप कर दोगे मुझे? सर पेटेंटी या लाइसेंसी जो पेटेंटी के वो फाइल कर सकते हैं। मेरे पास पेटेंट है, आई एम द ओनर ऑफ दैट पेटेंट, तो मैं जाके फाइल करूँ या आई कम टू यू कि मुझे बताओ कि भाई ये देखो ये मेरी प्रोडक्ट है,
ये दूसरा की Yes, प्रोडक्ट sir. सेम वो लोग बेच रहे हैं, सेम है, सेम पेटेंट है। हाँ सर, नाउ टेल मी आप कर व्हाट, आप कर सकते हैं, जो लाइसेंसी है पेटेंट के वो भी कर सकते हैं। सीधा जाके मैं कंप्लेन फाइल कर दूं, उसके पहले कुछ? हाँ सर, नोटिस भी दे सकते हैं उसको, लीगल नोटिस इशू कर सकते हैं। हु विल गिव लीगल नोटिस? नोट कीजिए सर। मैं खुद लिखूं लीगल नोटिस एज ए सॉरी कंपनी सर। वाई एक्स, सॉरी कंपनी एक्स, आई नीड टू राइट लीगल नोटिस? मतलब आपको गाइड करना है मुझे कि मैं क्या करूं। मैं आपके पास आ गया कि ये देखो मेरे जैसी प्रोडक्ट दूसरा भी सेल कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए टू स्टॉप हिम? सॉरी सर। कौन से कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं हम? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में। कहाँ की डिस्ट्रिक्ट अगर कोर्ट? सर जो इंडिया के ही है, अगर इंडिया में हो रहा है तो। आपके वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, मेरे राजकोट में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जयवीर जी की वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मैं कहाँ जाके फाइल करूं? सर जहाँ मैं पर मुंबई में रहता हूँ, इन्फ्रिंगमेंट। मेरी कंपनी एक्स है, मैं यहाँ से सब मैन्युफैक्चर करता हूँ। जो कंपनी वाई है वो पुणे से है, वो मेरे जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मुझे उनसे प्रॉब्लम है, तो मैं कहाँ जाके ये केस फाइल करूं? सर मुंबई में या फिर पुणे में, कहीं मैं पर भी दिल्ली हो में कर सकता है, सकता दोनों हूँ। में। सर मेनली तो जहाँ पर इंफ्रिंजमेंट हुआ वहां पर, और मैं वहाँ। राजकोट से हूँ तो राजकोट में कर सकता हूँ, यस सर, जहाँ मेरा कर घर सकते। है। मेरी फैक्ट्री मुंबई में है, मेरा घर राजकोट में है, और सर जो जो पेटेंट, कंपनी, आई थिंक हाँ, सर जो पेटेंटी का एड्रेस है वहां से, उसके वो मेरा घर डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट में कर एड्रेस सकते। राजकोट का है, मेरा घर का एड्रेस राजकोट का है, मेरी कंपनी मुंबई में है, और जो सर हाँ, सर अगर आपने घर का एड्रेस भी वहां पर ऐड कराया है पेटेंट में, तो सर वहां पर भी हो सकता है, राजकोट में। पेटेंट का राइट्स किसको मिलता है? पेटेंटी को सर। एप्लीकेंट को या इन्वेंटर को? सर एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट कौन, हु कैन बी द एप्लीकेंट? एप्लीकेंट सर पेटेंटी मैं, भी हो सकता है सर, जिसने इन्वेंशन बनाया है। नो, योर आंसर शुड बी नेचुरल पर्सन, either natural person or a small entity or a registered entity could be a applicant. इन्वेंटर कौन हो सकता है? सर इन्वेंटर सर जिसने इन्वेंट किया है, जिसमें क्लेम जिसने क्लेम में थोड़ा इन क्लेम इनपुट इन्वेंट दिया चाहिए हो। उसके। यस सर। ओके। पेटेंट की वैलिडिटी क्या होती है? सर 20 years। फ्रॉम द विच डेट? रिकॉर्डल डेट, नहीं, डेट ऑफ व्हाट इज दैट? पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट्स। पब्लिकेशन या ग्रांट, कौन सी डेट से? सर पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से। पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट मतलब जब ग्रांट हो जाए उसके बाद जब पब्लिश हो जर्नल में, उसके बाद 20 साल। नहीं सर, प्रोवर्टी डेट से। व्हाट इज प्रायोरिटी डेट? सर जब वो फाइल हुआ है वो भी हो सकती है, या अ, जो भी वो प्रोवर्टी का रजिस्ट्रेट को। ओके, fine. I think it's fair enough. 15 minutes. Jaivir ji, Yes, sir. Yes, sir. So, sir, yeah, uh, please evaluate him. What should be his score? out of A tough task. Out of 50, out sir. of As the Viva 50. runs I is first 50, request all 50. the participants.
I request all the participants to mark your score out of 50 in the chat box. Then I will give my ओके, आप सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी यहाँ पर हैं, कैंडिडेट्स हैं, पेटेंट एजेंट्स हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि गौरव सर के वाइवा से उन्हें आप स्कोर दीजिए। एक रेंज में भी दे सकते हैं, मैं इनको दे रहा हूँ। मेरी जो रेंज बन रही है यहाँ पर 28 से लेके 33 की रेंज बन रही है। दैट व्हाट आई थिंक आउट ऑफ 15 को मार्क्स मिलेंगे। 2 लोगों ने 25 दिया है। Still I'm waiting for 1 or 2 more. 33. Anyone else? I think everyone has given, right? Only one person is missing. Yeah, I will also give 25 to 28. बट देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप जिस तरीके से मीन्स आप है ना, मना भी बोल्डली कर देते हो। आता है आपको, आंसर भी आप अच्छे देते हैं, बट मना भी इस तरीके से कर देते हैं। जी आदि सर प्लीज। सर मैं तो Yes. गौरव जी से एक ही बोलना चाहूंगा सर कि आंसर देना है तो विश्वास से दो। झूठ बोल के मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप शर्मा के दे रहे हो आंसर। मैंने 25 इसीलिए दिया आपका स्कोर, आपका आंसर सही है तब भी आप शर्मा रहे हो। शर्माते क्यों यार? यू नो द आंसर, यू हैव टू बैक विद दैट। ओके, आपको लड़ना है उस आंसर के लिए। थोड़ा सा Okay, sir. Okay. प्रिपरेशन कर लो, वो दैट इज फाइन दैट यू हैव सम कंसेप्ट्स दैट आर नॉट इन लाइन, बट आपका आंसर मोस्टली सही दिख रहा है मुझे। बट जो आप बोल रहे हो उसको, वो आपको शक से क्रिएट कर रहा है कि यू आर क्रिएटिंग दैट डाउट कि आंसर इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। योर सेल्फ यू आर क्रिएटिंग द डाउट। वो डाउट वाला फैक्टर हटा दो। गलत आंसर भी अच्छे से बोलोगे तो हो सकता है पीपल विल गिव यू समथिंग, बिकॉज नॉलेज तो पीछे खड़ी हुई है, नॉलेज इज ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। वो आपका पेटेंट एक्ट दिया हुआ है। दे वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कितना विश्वासजनक आंसर दे सकते हो उनको। तो जस्ट दैट, प्रैक्टिस मोर। और आप थोड़ा सा बोलने का प्रैक्टिस करो। यू आर आंसरिंग इन अ वेरी शॉर्ट, नहीं ऐसे शॉर्ट आंसर दे रहे हो आप। जो लॉयर होते हैं ना, वो उनको ऐसे हाथ धोना तो सर पे बैठते हैं वो लोग। वो चाहिए आपको। कीप टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। इफ पीपल आर आस्किंग अबाउट इन्वेंटर, start with everything that inventor definition is not defined in parent act, but in general we understand that inventor is a person who is working on the invention continuously till the invention is complete. ओके, पूरा ऐसा समझाओ उनको स्टोरी टाइप का, बच्चे की तरह। रेस्ट एवरीथिंग आई थिंक यू हैव स्किल सेट पूरा आपके पास है। यू विल कैन इजिली गेट अबाउट 40 के आसपास का, ओनली इफ यू हैव फेथ इन योर ओन आंसर्स। Okay, sir. Thank you. तो गौरव सर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बहुत ही आपने मीन्स कौन एप्लीकेंट, ये कैसे पूछा सर ने, कुछ क्वेश्चन किया तो कौन कौन फाइल कर सकता है? एप्लीकेंट। क्या इन्वेंटर के पास कोई राइट्स होते हैं? नहीं, बस खत्म हो गया वो आंसर। और जैसे ही आप कंप्लीट करते हो आंसर, सर दूसरा क्वेश्चन ला देते हैं, फिर आप उस क्वेश्चन में फंस जाते हो। इससे अच्छा है थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए साथ साथ में। इन्वेंटर्स और अभी तक नहीं होते हैं, इन्वेंटर के पास कोई राइट्स नहीं होते हैं, ये हमें पता चलता है सेक्शन नंबर 28 से। 28 सिग्निफाइज करता है इस बात को कि इन्वेंटर के पास कोई राइट्स नहीं होते हैं, बट हाँ, इन्वेंटर अपना नाम सर्टिफिकेट में लिखवा सकते हैं अगर वो फॉर्म नंबर 8 फाइल करे तो। ग्रांट के सर्टिफिकेट में कुछ भी बात कर दीजिए, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी रिलेवेंस लेके आप बात कर दीजिए ताकि वहां पर थोड़ी सी चीज उस डायरेक्शन में आगे बढ़े जिस डायरेक्शन में आपको आंसर्स आते हो। एम आई करेक्ट पार्थ सर? Yes, of course. So basically, now coming to the second session, that is what I need to guide you regarding the interviews that you need to face. The first thing is mostly they will ask you introduce yourself, and that makes the first breakthrough that what will be the questions all about to you. तो बेसिकली व्हाट आई आस्क यू इज, आप जो भी प्रिपेयर करो अपने आपका इंट्रोडक्शन, तो इट नीड टू बी नियरली 2 to 3 minutes, एंड इट कुड बी around how being a patent agent will help you in your career. Even though currently you not being a patent agent, you are already working, you are having your own career, but try to make a sense that how being a patent agent will add value to your career,
how being a patent agent will make some sense in your career, and why you are interested for being a patent agent. This is the most basic questions whenever I have faced the interview for the patent agent. It was being asked that why you want to become a patent agent, what is the motive behind you, why should we give you a agent certification, why should we give you a right to file the patent, and you need to defend it, you need to define it why you are interested. Else everything, even though you are very knowledgeable and you are thorough with the patent act, but the relevance that makes sense that yeah, you are passionate about being a patent agent, you are interested for being working for the patent, and future scope means, even though if you are doing a job in very separate segment or very wide other than this patent field, you need to make a sense that I will transfer my career in the field of patent, because there are no any patent agents around in my area. There is a huge scope being a patent agent. I would like to add my knowledge for practical technical knowledge in this law field, so that the economy or the total number of patents in India will grow. It will create. I would like to create awareness regarding the patents in our society. So this will make some sense, and that would be a break point for you to clear the, even though you are not, mostly I know, and I also understand that you would not be reciting all the uh, sections at a time, right? Only few sections you would be remembering at the time of your interview. I also understand, you also understand that uh, mugging up all the sections would not be feasible for you. But yeah, you create your background in this sense that they would not be asking you anything about the acts and sections and anything, but they would be asking you that yes, how you are interested to create more patterns, because the examiner or the person who is taking the interview, he would be the examiner of the patent, he would be the deputy controller of the patent. So they are already into it, they are interested to create awareness about the patent. They have given the task. So you being a interviewee, and if you represent yourself that I am one of your pilot, or I am one of your person who would be creating more awareness, that would be making sense to them. Another thing, looking at the interview of Gaurav ji, I felt that yeah, as Adiji said, that you need to be very thorough. When means any of the question is being asked, you should not reply only yes or no, or only one line answer. You should give the answer whatsoever you know about at that point. आपको जितना भी वो पॉइंट के बारे में पता है, राउंड राउंड करके वो सब पता देना है सर को. तो क्या है कि उसके अराउंड ही क्वेश्चंस आएंगे आपको. अगर क्वेश्चंस अगर आपको दूसरी ओर से आ रहे हैं, तो यू ट्राई टू शिफ्ट योर फोकस ऑन द फील्ड और ऑन द पॉइंट वेर यू आर गुड इनफ, राइट. और तीसरा थिंग है कि आपको अचका अचका के या बीच में रुक जाना नहीं है, और थोड़ा नर्वस नहीं होना है. बी रिलैक्स एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू. यू जस्ट गिव योर आंसर्स. और स्टार्टिंग में जो आपका ब्रीफ प्लॉट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप वो प्रिपेयर कर लो. आप ये वाले इंटरव्यू में या कहीं पे भी इंटरव्यू, आपको जो पहला आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसी को ऐसा डिफाइन करना है कि उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस आए, राइट. बाकी स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेटेंट के ही आएंगे आपको ज्यादा. प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर स्पेसिफिक कोई केस स्टडी का आप जिक्र करोगे तो उन पे ले जाएंगे, क्योंकि उनको तो पहले से ही पता होता है सब केस लॉस. तो हो सके तो केस लॉस अगर आपको पता हो तो ही बोलना, नहीं तो सिर्फ एग्जांपल देने में अगर आपने केस लॉ कोई भी बोल दिया, तो आपको उसके ऊपर ही सूट आ जाएगा कि वो बताओ क्या हुआ था, क्या है, और वो आपको नहीं पता होगा. इवन मुझे भी नहीं पता होता है. तो नेवर एवर रिसाइट द केस लॉस इफ यू आर नॉट थरो विथ इट. आपको नहीं पता है तो सिर्फ केस लॉ के नाम से बोलना नहीं कि ये लॉ के हिसाब से ये हुआ था, ये केस में ये हुआ था, भूल जाओ, हमको वो देना ही नहीं है. अगर आपने बोल दिया
गलती से तो उसके ऊपर ले जाएंगे, देन यू विल बी नोवेयर, क्योंकि इतने सारे केस लॉस के स्टडीज और वो सब है, हर रोज नया नया कुछ आता है। थोड़ा रिसेंट जो ट्रेंड है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है रिगार्डिंग आईपी फाइलिंग, आईपी सपोर्ट, आईपी रिएम्बर्समेंट और स्पेसिफिकली टू योर रीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उन लोगों की खुद की पॉलिसी है डीपीआईटी की कि वो एमएसएमई फाइलिंग, एमएसएमई रिएम्बर्समेंट देते। एसआईपीपी स्कीम जो है जिसके अंदर डायरेक्टली पेटेंट एजेंट फैसिलिटेटर के हिसाब से काम, he can do filing as a facilitator and claim the professional fees from the DPIIT, and जो इन्वेंटर है उनको सिर्फ गवर्नमेंट फीस पे करनी होती है। तो ये थोड़ी आपके रीजन की पॉलिसीज एंड डीपीआईटी की पॉलिसीज, स्कीम पॉलिसीज, यू शुड बी थरो विथ, तो ये सब थरो होंगे, और अगर आप उसके ऊपर ले जाओगे तो आपको सेक्शंस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बाकी सेक्शंस, अगर आप सेक्शंस के वो वाले में चले गए तो आई एम श्योर कि जयवीर जी के सिवा और किसी को तो इतने सारे सेक्शंस याद ही नहीं होते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा है, सभी राइट? को नहीं सभी को याद है सर यहाँ पर, देन वेरी गुड, एवरीवन इज बट नोइंग। या बट हाँ, फिर भी आप कहते हैं कि क्योंकि उनको क्यों डीप में लेके जाना है, जितना हमें क्योंकि अगर कॉन्फिडेंटली हम पता है सेक्शंस वहां के तक ही ऊपर ले जाएंगे। जाएंगे तो दे विल आस्क यू डायरेक्टली ऑफ द सेक्शंस। अगर इफ यू आर थरो विथ, कॉन्फिडेंट विथ, then go with the sections, else make them rotate around the policies, different supports that is available in your region। रिसेंटली जो ट्रेंड हुआ है, रिसेंटली क्या पैटर्न हुई है, रिसेंटली क्या जीआई, कौन से जीआई को लास्ट जीआई कौन सा अप्रूव हुआ, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट, कि वो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अभी पेटेंट ऑफिस जीआई के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, राइट। जो अभी ड्राफ्ट आए पेटेंट के और ट्रेडमार्क अटॉर्नी के कोड ऑफ कंडक्ट वाला, वो ध्यान में कोड ऑफ होना चाहिए। कंडक्ट। हाँ, रिसेंटली डिजाइन का भी अमेंडमेंट का ड्राफ्ट आया है, तो वो भी आपके ध्यान में होना प्रपोज्ड। चाहिए। हाँ, प्रोपोज्ड है। तो ये सब अगर आपके पास ध्यान में है तो दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट रेदर देन आस्किंग यू अबाउट द सेक्शंस। एंड मेरा पर्सनल सजेशन है कि सेक्शन में कभी मत जाओ, क्योंकि सेक्शंस में वो लोग इतने ज्यादा थरो होते हैं, यू विल नेवर गेट ए चांस टू डिफेंड देम। मैं तो नहीं हो सकता, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि I revolve them around the systems and the supports they are giving, and I can defend them. So आपका एक्सपर्टाइज क्या है उसके अराउंड आपका जो पहला पैराग्राफ होता है ना आपका इंट्रोड्यूस वाला, वो उसके अराउंड घुमाओ कि आपको कौन से फैक्टर का या कौन से साइड का क्वेश्चनरीज चाहिए सामने से। तो प्रिपेयर योर ब्रीफ लाइक दैट वे, एंड उसके ऊपर से पूरा इंटरव्यू आपका घूमेगा। यू विल बी गिवन नियरली 15-20 मिनट्स आपका इंटरव्यू रहेगा, राइट। आप भी जैसे गौरव जी का हमने किया वैसा ही 15-20 मिनट तो मिनिमम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो 2-4 क्वेश्चन हो गए निकाल देंगे हमको, ऐसा नहीं है। अगर आपका आंसर नहीं भी आया तो पोलाइटली आप ये आंसर नहीं पता है, बट यू कैन दे विल बी कंटिन्यूइंग योर क्वेश्चनिंग, तो उनका क्वेश्चनिंग चालू रहेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएंगे वो, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। या नाउ विल बी मूविंग टू द क्वेश्चंस यू हैव। Okay, so now third section is on question and answer session. If you are having any questions to the panelist, he is ready to answer that questions. सर, आपने जो कहा था कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, so it comes under Ministry of Commerce, correct? If I'm Yes. wrong, please correct me. Yes, it is. So Gaurav sir, the patent office comes under the Ministry of Commerce, और ये सारे बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स है, तो कॉमर्स के अंदर ही आना है। So it's very much so. और आरटीआई भी हम जब भी करेंगे तो उसमें भी सेलेक्ट करना होगा हमें, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को सेलेक्ट करूंगा, then we It can is proceed. Ministry of Commerce and Industry, MCI. MCI, that's correct, Ministry of Commerce and Industry। जी सर। और सर, आपने एक दूसरा क्वेश्चन किया था यहाँ पर कि अगर कोई लाइसेंसी है प्लस पेटेंटी है, जो पेटेंट ओनर है, दोनों में से कोई भी पर्सन जब सूट फाइल करते हैं
तो वो सूट फाइल करने से पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो उसका आंसर यही रहेगा ना कि उसको प्रोडक्ट सिमिलैरिटी जो ओनर है उसे प्रूव करनी पड़ेगी, मीन्स जो कर रहा है केस, बर्डन ऑफ जो प्लेंटिफ बर्डन है ऑफ उससे। प्रूफ रहेगा। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ जो पेटेंटी है, ओनर है, उसकी रहेगी। द फर्स्ट स्टेप एज ए पेटेंट एजेंट और द प्रैक्टिसिंग एजेंट, हमको क्लाइंट को ये बोलना है कि सबसे पहले आप इतना प्रूफ इकट्ठा करो कि वो सेल कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट जो है हमारी सिमिलरिटी। पहला तो प्रूफ हमको इकट्ठा करना है कि वो सेल कर रहा है, मार्केट में है। नोट अगर वो ऐसा प्रूव कर देगा कि मैं तो मार्केट में नहीं हूँ, मैंने तो दो चार चीज ही बनाई थी मेरे अपने खुद के यूज के लिए, तो आपका क्लेम सस्टेन नहीं रहेगा। तो आपको 1-1.5 महीने तक पहले तो उसका सेल्स बिल्स, प्रोडक्ट का चैनल, वो सब देख के पूरा एविडेंसेस इकट्ठा करना है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप, उसके बाद हमारा स्टेप रहेगा उसको नोटिस देने का। तो एज ए पेटेंट एजेंट, either you need to draft a notice for your client, else you need to take support from the advocate for drafting a legal notice। तो आप अपने क्लाइंट को ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो आपकी पेटेंट ले दी है। नाउ आप now I don't know I don't have any further options for you। So that should not be your answer। You should provide some support। either अगर आपको नहीं पता है तो you should answer कि सर आई विल, मैं अपने क्लाइंट को बोलूंगा कि मैं कल आपको इसके ऊपर स्टडी करके पूरा डिटेल्स दूंगा, और मुझे खुद को दूसरे कोई पेटेंट एजेंट से पूछना पड़ेगा कि भाई देखो ये मेरे क्लाइंट है, मुझे क्या करना है। तो ये आंसर आप बोल सकते हो सर को, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, आप चले जाओ। तो प्रैक्टिस यू शुड बी अवेयर कि भाई मुझे जो भी मेरे सामने आया है मेरा क्लाइंट, तो मुझे उसको आंसर देना ही है। आज नहीं देना है तो कल देना है। तो कल मैं कैसे दूंगा? कोई मेरे दोस्त को पूछ लूंगा कि भाई ये आया है, मुझे क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए, तो वो आपको गाइड करेगा। लेकिन आप ऐसे आंसर नहीं दो कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए, राइट? तो ड्राफ्टिंग कर सकते हो एज ए एजेंट, आप नोटिस दे सकते हो। अगर इफ यू आर नॉट थरो विथ द ड्राफ्टिंग ऑफ द नोटिस, यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम द एडवोकेट, वो नोटिस ड्राफ्ट कर देगा, and you can work collaboratively with the advocate। Then the step comes for filing the police FIR, or या either डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेन सूट फाइल करने का। हाँ, फिर आपका यही क्वेश्चन था ना ज्यूरिसडिक्शन, या कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ से होगा? तो उन्होंने आंसर दिया था कि प्लेंटिफ की तरफ से भी हो सकता है, जहाँ पर इंफ्रिंजमेंट हुआ है वो भी हो सकता है, एंड पर्टिकुलरली सर्विस ऑफ एड्रेस पे वो आंसर लास्ट में लाई कर रहा था। आपने भी बीच में कहा कि दिल्ली हो सकता है क्या? तो ही सेड नो। एंड सर्विस ऑफ एड्रेस अगर पेटेंटी ने अपना घर का दिया है तो वहां पर भी फाइल कर सकते हैं, बट इट इज मोर रिलेवेंट कि आप वहां पर फाइल करिए जहां पर इंफ्रिंजमेंट हुआ है। सो इज इट आप करेक्ट? टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फाइल कर सकते हैं। द प्लेस वेयर द पेटेंटी रिसाइड्स, मतलब मैं जो राजकोट में रहता हूँ, तो राजकोट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मेरी कंपनी जो कि अहमदाबाद, सॉरी, मुंबई में है, तो मुंबई में फाइल कर सकता हूँ। थर्ड इज द पुणे वेयर द अनदर कंपनी रिसाइड्स, जहाँ पे मेरा पेटेंट का प्लेगरिज्म हो रहा है, तो वहां पे हो सकता है। एंड द फोर्थ इज वेयर द प्लेंटिफ इज रिसाइड, सॉरी, जो मेरा कॉपी कर रहा है उसका जो घर का एड्रेस है, अगर वो उसके आगे गोवा में रहता है, तो गोवा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं कंप्लेन रेज कर सकता हूँ। तो ये 4 कर जगह पे सकते मैं कर हैं सकता हूँ। सो दोनों करनी के कहाँ है? होम के एड्रेस, एंड एक का जो बिजनेस है वो, और एक दोनों जहां का पर बिजनेस चोरी हुई एड्रेस, है वो। दोनों के बिजनेस एड्रेस एंड दोनों के घर के एड्रेस, दोनों वो के चारों घर के जगह में। एड्रेस। हाँ, वो चारों जगह में हो सकता है। तो इट इज अप टू यू, आपको कहाँ पे करना है। तो मोस्ट रिलेवेंसी, अगर आप घर के पास करना चाहते हो तो घर के पास करो, आपकी फैक्ट्री जहाँ पे वहां पे करना है तो वहां पे करो, बट इट इज 100% अप टू यू। तो मोस्ट रिलेवेंट अच्छी सबसे जगह आप ही पता कर सकते हो कि कहाँ पे फाइल करना है। हाँ सर। That's it from my side. Any question that you would like to ask Gaurav sir, anyone else? Yes, Sakshi. लेकिन ये हेलो। इन्फ्रिंजमेंट अगर कहीं और हुआ अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड द कंपनी, प्लीज। सर इन्फ्रिंजमेंट मतलब वो जो दूसरी कंपनी है वो तो पूरे इंडिया में बेच ही रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मुंबई में प्रोडक्शन कर रहा हूँ,
लेकिन मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स पे बेच रहा हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट That को पूरी इंडिया में चल रही है। सेम थिंग वो लोग पुणे में बना रहे हैं और पुणे में से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में या कर्नाटका, आंध्रा में भी बेच रहे हैं। तो इन्फ्रिंजमेंट जनरेट कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, वो प्लीज हमको करनी पड़ेगी। okay, sir. And one more question you asked about GI ना कि आपके एरिया का GI में क्या आता है? Like we have to tell the product, is it? Like for example, if it is a Bangalore, I have to tell like Mysore silk or coffee like. यस यस, Okay, okay, दैट वाज माय क्वेश्चन कि आपको आसपास के रीजन का कुछ पता है कि आपके वहां पे कौन से जीआई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या हाँ, ऑल्सो यू कैन गो थ्रू योर जीआई वेबसाइट कि अभी कौन से प्रोसेस में है आपके रीजन से। जैसे हमारे गुजरात में से ऊंजा का जीरू अभी प्रोसेस में है, मेरे राजकोट का पटोला ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पाटन का भी पटोला रजिस्टर्ड है। तो आई नीड टू बी अवेयर अबाउट द जीआई इन माय रीजन। तो इट मेक्स, मेरा क्वेश्चन तो वही था कि okay, आपको पता है कि आपके आसपास में कौन से जीआई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एंड एज ए पेटेंट एजेंट यू कैन ऑल्सो फाइल द जीआई एप्लीकेशंस, राइट। तो आपको नियर बाय रीजन का पता होना चाहिए कि कौन से ऑलरेडी हो गए हैं और क्या कौन से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोरबंदर की खाजली है तो वो कर सकते हैं, अभी हुआ नहीं है। okay, तो sir. दैट इज अवर जनरल नॉलेज आई वाज आस्किंग कि आपके आसपास क्या चल रहा है। Yes, thank you, sir. Hello, Sir, sir. who is going to approach us in filing the GI? Government? नो, why should government approach you? Then, The association, the members or the associations who are selling that product, okay. they would approach you. Yeah, the government not directly but indirectly, because government is promoting this GI. So few of the departments like Khadi department and some specific departments are there, जो खादी का जो बोलते हैं ना, खादी ग्राम उद्योग डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट है, दे आर प्रोमोटिंग द जी, दे आर इंटरेस्टेड टू गेट द जीआई, सो दे वुड आस्क द एसोसिएशंस टू फाइल फॉर द जीआई। सो एसोसिएशंस को ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करते कि आप ऐसा करो, उसके रिगार्डिंग उसके पास फंड भी है, वो सब भी है, लेकिन अल्टीमेटली फाइल कौन कर सकता है, तो कि पेटेंट एजेंट। तो एसोसिएशन अप्रोच करते हैं along with the these government bodies या government departments, they would be promoting कि भाई इनका भी करवाओ, इनका भी कुछ नाम हो जाएगा और एक आइडेंटिटी रहेगी। तो या डायरेक्टली गवर्नमेंट आपको अप्रोच नहीं करेंगे कि भाई आप कच्छ में रहते हो तो वहां पे वो जो जूता बनाते हैं वो सबसे अच्छा है, तो आप उनका फाइल कर दो, ऐसा नहीं होता है। वहाँ के एसोसिएशन को ही फाइल करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट विल आस्क देम कि भाई आप ये करो, तो वो लोग हमारे पास आएंगे। Either you directly can also approach to the associations or the जो members होते हैं कि जो ये सब चीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो एज ए एजेंट यू कैन ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस कि भाई हमारा जो रीजन का ये जो आइटम है, जैसे कि आई थिंक उत्तर प्रदेश में लिट्टी चोखा है, तो अगर वो उसका स्पेसिफिक टेस्ट और ओरिजिन और वो सब रहता है, तो यू कैन प्रोसीड विथ इट। जी सर। Sakshi ma'am, do you want to ask any question? Yes, sir. So like I also deal with patent landscapes and other stuff. So like what can be the subsequent questions that can be asked from it? सो अगर आप पेटेंट लैंडस्केपिंग कर रहे हो तो यू शुड मेक देम सेंस दैट अगर मैं पेटेंट एजेंट बन जाऊं तो मेरी कंपनी में भी मैं पेटेंट का फाइलिंग का और वो सब मैं देखूंगी, तो इट वुड अप्रिशिएट माय जॉब प्रोफाइल। लैंडस्केपिंग वेरी गुड। आप भी फार्मास्यूटिकल में ये या Sir, टेक्नोलॉजी में? chemical engineering in-house. केमिकल इंजीनियरिंग इन हाउस। तो लैंडस्केपिंग के बारे में तो मोस्टली कौन सी कंपनीज है,
लेकिन वो कंपनीज या कोई स्पेसिफिक नाम से नहीं जाते, बिकॉज दे कीप इट असाइड रिसाइटिंग नेम ऑफ एनी प्राइवेट एंटिटी। बट हाँ, वो पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या टूल्स यूज करते हो, आप लैंडस्केपिंग कैसे करते हो, व्हाट आर द जनरल ट्रेंड्स यू आर सीइंग इन द पैटर्न्स, कि आपको कैसे ट्रेंड्स ज्यादा दिखने मिलते हैं, कि भाई कौन से एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस होता है आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आ सकते हैं। लेकिन सर एक क्वेश्चन यस, था, जैसे हम लोग जब ट्रेंड्स निकालते हैं तो हम लोग लास्ट 18 ईयर्स का डेटा पब्लिश नहीं होता है उसमें, तो हम लोग ट्रेंड्स उसके पहले के बेसिस पे निकालते हैं। तो किसी एक अभी लास्ट इंटरव्यूज में भी किसी ने एक में क्वेश्चन था कि मतलब अगर जब हम लोग लास्ट 18 मंथ्स का ट्रेंड नहीं दे पा रहे हैं तो लाइक हाउ वी आर सो श्योर दैट वी आर प्रोवाइडिंग द करेक्ट और एक्यूरेट डेटा। एक्सपोनेंशियल या फिर आप वही एक्सटेंडेड रिसर्च के ऊपर से देते होंगे। यस सर। हाँ, और अगर आप मतलब यू आर सेइंग कि अगर आपको लास्ट 18 मंथ का डेटा नहीं मिल रहा है, तो कौन सी कंट्री का नहीं मिल रहा है? बाकी इंडिया में तो नहीं वो सर, वो जर्नल। पब्लिकेशन हो सकती है ना, 18 महीने पहले किसी हाँ, ने फाइल 18 किया महीने। है, जो 18 महीने के बाद पब्लिश होने वाला है, वो तो हमारे डेटा में आएगा नहीं। ओके ओके, वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने अर्ली पब्लिकेशन फाइल नहीं किया है लेकिन उनके डेटाबेस में ऑलरेडी आ गया है, तो उसके ऊपर आपको कैसे पता चलेगा? वो तो नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रिसर्च पेपर या कोई आपकी कॉम्पिटिटिव कंपनी है, उसके जो R&D टीम के कोई हो और उसके कोई रिसर्च पेपर हो या कोई और जगह किसी किसी ने उसको किया होता है, उसके ऊपर से हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ वर्क हो रहा है। बट एक्चुअल में 100% तो आप अगर डेटा ही नहीं है तो वी कैन नेवर प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन, कि भाई वो तो नहीं मिल रही है। ओके सर, थैंक यू। मैडम, इसका आंसर कैसा बनता है पता है? मैंने अभी एक सीनियर एडवोकेट थे, उनसे बात की है, और उन्होंने मुझे ये बताया कि इसीलिए वो लोग अर्ली पब्लिकेशन फाइल नहीं करते हैं, यानी वो हिडन रखते हैं अपने इन्वेंशन को 15 महीने तक। और 15 महीने तक हो सकता है कि वो जो दूसरे पर्सन है, जिनकी पेटेंट ऑलरेडी उनसे पहले फाइल हुई थी, एंड उनकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाती है, तो 18 महीने तक उनका वो प्रायर आर्ट सर्च चलता ही रहता है, लैंडस्केपिंग चलती ही रहती है। सो बिफोर 18 मंथ इफ दे गेट नो कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें हर्डल कर सकती है, तो वो अपने इन्वेंशन को पीछे हटा लेते हैं, रादर देन मूविंग फॉरवर्ड, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। सो माइट बी दी आंसर, मुझे भी अच्छा लगा समझने के लिए, बट सही लगा। जी प्रदीप पाल सर। सर मेरा क्वेश्चन भी सेम लाइन पे है, लाइक साक्षी, मेरा भी डोमेन इंजीनियरिंग है, बट वो पेटेंट लैंडस्केप इन हाउस के लिए करते हैं, मैं प्योर कंसल्टिंग के लिए करता हूँ। सो उस वे में आंसर कहना कि हाउ पेटेंट एजेंट, बीइंग अ पेटेंट एजेंट, क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, क्यों मैं करना चाहता हूँ, वो एक चैलेंजिंग आंसर है मेरे लिए। क्योंकि जैसे साक्षी ने बोला वो लैंडस्केप करते हैं, तो आई थिंक उनका 80-90% लैंडस्केप होता है पेटेंट के बेस पे। मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरी स्टडीज में 30% ही पेटेंट रहता है। मोर मेरा स्टार्टअप, मार्केटिंग, साइजिंग, वो अपॉर्चुनिटी हाँ, फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी ये प्लॉटिंग मेरा करते हैं ना। ज्यादा रहता है। तो हम्म। उस वे में बोलना कि ये मुझे सपोर्ट किस तरीके से करेगा, वो एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट है। मैं ट्राई कर रहा हूँ आंसर क्रिएट हम्म। करने का, स्टिल अगर आपकी तरफ से कोई एडवाइस हो उसके लिए। आपके लिए ये एडवाइस है कि अ, अभी आपका कंसल्टेंसी है कि पेटेंट लैंडस्केपिंग दे रहे हो। आफ्टर बीइंग ए पेटेंट एजेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खुद को ही वर्क करना है, आपके अंडर में भी लोग जो होंगे वो ड्राफ्टिंग करके आपको देंगे और आपकी ऑथोरिटी से आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। तो आपका जो सर्विस सेक्टर है वो बढ़ जाएगा, कि अभी सिर्फ आप कंसल्टेंसी सिर्फ लैंडस्केपिंग दे रहे हो। फ्यूचर में बीइंग ए पेटेंट एजेंट आप उसकी भी कंसल्टेंसी ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं पेटेंट फाइलिंग भी मैं कर रहा हूँ। अगर आप मैंने आपको लैंडस्केप दिया है लेकिन उसमें आपका जो रिसर्च है या आपका जो इनोवेशन है वो नहीं है कहीं पे भी, तो आपको अगर फाइल करना है तो दैट ऑल्सो वी डू प्रोवाइड। So that will ये be सट broadening your scope of service in your consultancy. सर्टेन एक्सटेंट तक यही आंसर सेम फैशन में मैंने भी
प्रिपेयर करा है, बट मुझे एक चैलेंज लगता है वहां से क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है। यू आर ऑलरेडी फ्रॉम अ कंसल्टिंग डोमेन, आप एक थर्ड पार्टी के लिए लैंडस्केप या उन्हें एडवाइस कर रहे हैं। तो अगर आप उन्हें एडवाइस कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो, फ्रेमवर्क उनका है, उनको प्लान करना है, आप उनके लिए फाइल नहीं कर सकते। तो उस वे में किस तरीके से, और मतलब मेरा जो आंसर है, और उन्हें कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ मैं फाइलिंग डोमेन की तरफ जाऊंगा, एक मैं वो वाला नुआंस या कोई एक फैक्टर आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ स्टिल अभी तो के लिए। प्रदीप, लाइक उनको तो नहीं पता है ना, हम लोग इन हाउस कर रहे हैं कि हम लोग थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं। यू कैन फ्रेम योर आंसर लाइक दैट कि हम लोग अपने इन्वेंटर्स के लिए, लाइक मेरा तो इन हाउस है, तो आई कैन से हम्म। दैट कि मैं अपने इन्वेंटर्स को हेल्प कर रही हूँ। लाइक लैंडस्केपिंग में उनको कभी पेटेंट फाइलिंग के बाद जो बैकग्राउंड चाहिए होता है उसमें भी हेल्प होता है। तो नो वन, क्योंकि आपका वो नहीं जा रहा ना कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जाके वो लोग चेक करके कर रहे हैं कि आपका नहीं, इन हाउस है नहीं है। वो लास्ट इंटरव्यू में किसी ने बोला था, वो हम्म। पैरेलली ना पर्सन का लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख लेते हैं, और लिंक्डइन प्रोफाइल से कंपनी का नाम देखते ही दे गेट टू नो कि ब्लॉक कर मेरी दो। कंपनी पेटेंट में काम ही नहीं करती एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, पेटेंट के बारे में हम काम ही नहीं करते हैं एक्चुअली कुछ भी। वो पास्ट की नॉलेज है कि प्रदीप मुझे सर। पता है लैंडस्केप वगैरह। तो उस केस में मुझे एक डाइसी सिचुएशन है कि अगर पर क्रॉस क्वेश्चन में प्रोफाइल देख लिया तो आई विल बी स्टक। प्रदीप सर, हाँ सर। अभी वाइवा के क्वेश्चन की फ्रेमिंग को साइड में रखते हैं और रियलिटी बताओ क्या है, क्यों कर रहे हो पेटेंट एजेंट? मुझे एक्चुअल रीजन तो ये है, जो मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ, हम्म। एआई का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। आई एम नॉट सीइंग कि लास्ट नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में कंसल्टिंग का डोमेन इतना रहेगा। जेन्युइन हम्म। रीजन तो ये है। तो हम्म। मुझे अपना स्कोप वाइड करना है, ताकि मैं एक कंपनी के लिए मल्टीपल डायमेंशन में रिलेवेंट रह सकूं फॉर जॉब प्रोफाइल। दैट्स द एग्जैक्ट आंसर जो है मैं क्यों पेटेंट एजेंट कर रहा हूँ। ये गिव आंसर द दो सेम ना, आंसर। यही आंसर दो ना। फ्रेमिंग क्यों कर रहे हो अच्छा। आप, मुझे ये बताओ, आप फेक चेहरा क्यों बनाना चाह रहे हो? फेक वहां बनाओ जहां आंसर है ही नहीं। ओके। जब आपके पास रियलिटी सिचुएशन है, रियल सिचुएशन है, उसको दिखाओ ना। भाई सबको पता है मार्केट में कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज में हम्म। कंपटीशन बढ़ रहा है। आई जस्ट वांट हम्म। टू परस्यू, वाइड आवर माय स्कोप। आई एम increasing my scope of services that I can provide to my company, existing company. तो क्यों नहीं देना चाह ओके। रहे हो आप, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, अगर उसमें मैं एक क्रॉस क्वेश्चन रहता है ना कि कंसल्टिंग से रह के अगर आपको, नहीं आप आएगा, उसी रोल में फिक्स नहीं रहे, तो आप आएगा, हो सकता है ना नेक्स्ट 2 साल में आप पेटेंट की कोई फाइलिंग की तरफ जाओ ही ना। यू नहीं जस्ट गेट आएगा, द सर्टिफिकेट एंड नहीं सिट। आएगा, नहीं आएगा। पूछो क्यों? आपको वो जॉब दे रहे हैं कि पेटेंट एजेंट बनाने का वाइवा ले रहे हैं? पहली बात तो सर, माइंडसेट पता है क्या, ये क्यों आप फंस रहे हैं सब लोग, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा कि मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, और ये माइंडसेट क्यों बन रहा है? हम्म। आप इसको इंटरव्यू सोच रहे हो, ये वाइवा है। आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल में वाइवा नहीं दिए क्या आज तक? दिए हैं सर, वो दिए हैं। हाँ, ये जो माइंडसेट हम बना रहे हैं ना कि ये एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है, इंटरव्यू नहीं है ये वाइवा है। वाइवा में आपकी नॉलेज चेक होती है, आपको चेक नहीं किया जाता है। ओके। बीइंग अ पर्सन, आपको वो जॉब नहीं दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। आपको क्वालिफिकेशन एग्जाम के तौर पे चेक किया जा रहा है, आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। इतना क्यों उसको डीप, इतना बड़ा आप इशू बना रहे हो? मैं नहीं समझ पा रहा। ये माइंडसेट को आप थोड़ा सा करेक्ट करो, ये अलाइनमेंट बिगड़ रहा है। नहीं, ये बहुत ज्यादा सेशंस हो चुके हैं ना, ऐसा लगता है डेली एक नया अपडेट आता है कि इंट्रो में ये रखना है, ये नहीं रखना। नहीं, अगर आप थोड़ा बड़ा इंट्रो क्वेश्चन में ज्यादा आ जाएंगे। सर, शादी के लिए जब लड़की देखने गए थे तो क्या इंट्रो दिए थे? वहां तो क्या ही इंट्रो दिए। बस, हुई ना शादी। हाँ। कहाँ इतना लगे पड़े हो मालिक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सोचिए प्रदीप पाल सर कौन बता रहे हैं। अरे मैं भी बोलने वाला था, मैंने चलो छोड़ देते हैं अभी। तो सर, ये माइंडसेट क्यों हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप इस वाइवा को इंटरव्यू सोच रहे हो, मैं इसलिए बार बार ये वर्ड चेंज करता हूँ। इंटरव्यू नहीं है ये वाइवा है। ओके। ये जो हर जगह इंटरव्यू 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 है ना, ये उसके कारण ये जो दिमाग के घोड़े हैं ये सातों दिशाओं में भाग रहे हैं।
हाँ वो तो है सर। इसको रेस्ट्रिक्ट करो। ये वाइवा है, वाइवा में आपके सब्जेक्ट नॉलेज चेक होती है। मोरोवर सर, रजत सर, यस ये सर। प्रदीप पाल सर को भी सोचने की जरूरत है। हम जैसों का क्या होगा। सर, सोचना सर पड़ेगा। सर एटलीस्ट 25 तो चाहिए ना, मैं बस उतना आ सोच जाएंगे नहीं सर, ये पा तो रहा ऐसे ही दे देंगे वो। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं प्रदीप नहीं, पाल सर, तेरह यू तेरह आर रॉन्ग। नंबर भी आए हैं। ऐसा ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको 25 चाहिए, 50% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। आपके टोटल 150 होने चाहिए। 85 आपके हो गए हैं। मुझे होगा। लगता है कि आपके पेपर 2 के भी नहीं 60 सर, या अप ही है। सर तीनों सर मान एग्जाम में लो 50 है। 50% होना जरूरी है। अरे मान लो 50 है। तो आपको 15 चाहिए बस, 14 मार्क्स आपका हो सारे गया। चाहिए आपको। अरे जाके मगर वो नहीं नहीं भाई नहीं दे नहीं, दो बस। ये नहीं नहीं, ये बात नहीं है, बट ऐसे थोड़ी ना जाते हैं। भाई वाह, ऐसे थोड़ी ना देने जाना है। ये अरे नहीं बात है। वाइवा थोड़ा देने नहीं प्रिपेयर जा। करके जाना है कि वाइवा। मतलब। आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, आप हर एक में जो बस। डिटेल्स ले रहे हैं, लीजिए। आप खुद ब खुद एट द टाइम ऑफ वाइवा जो पूछेंगे ना आपसे क्वेश्चंस, आप खुद ब खुद एक आपकी वो आ जाएगी, ट्यूनिंग आ जाएगी। क्योंकि इतना आपने प्रेशर लिया है ना सर ये चीजों को सुनने में, अब आपका फ्रेमिंग होगा ही। आप इवेल्युएट कर लोगे एट द टाइम ऑफ वाइवा। जैसे ही उस पर्सन को देखोगे ना जो आपको वाइवा देने जा रहे हो, उसके सामने बैठोगे ना आप, एट अ अपने फ्रीक्वेंसी आप ऑफ होगा। टाइम अपने आप होगा वो सर। वो होता ही है, सभी से होता है सर। हाँ सर, पहले तो बस सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है, ये जो प्रेशर बन रहा है ना, इसको रिलीज करो। ये प्रेशर कुकर मत बनाओ अपने आप को और अपने दिमाग को। हम्म। और ओके सर। सर, गड़बड़ वहीं होगी। गड़बड़ इसलिए नहीं होगी कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। गड़बड़ इसलिए होगी कि बीइंग प्रिपेयर्ड आप प्रेशर में हो। नहीं नहीं सर, वो प्रेशर वाला तो छोड़ ही दिया है। मैं तो ये सोच के जा रहा हूँ, अगर वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे ना, 3 तो गलत होंगे ही होंगे। मुझे सर, 7 ठीक मैं करने हैं जनरल बस। आपकी बात नहीं सर कर रहा हूँ, जनरल सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये वाइवा है ना सर, ये वो नहीं है कि आपको 10 में से अगर आपके 9 भी गलत हो गए ना सर, 10 में से 9 भी गलत हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एक सही वाला है ना, उसमें आपकी डेप्थ कितनी है वो देखी जाती है। ओके। आप अगर एक सही भी दे रहे हो मगर उसको समझ में आ गया ना कि हाँ यार इसको सब कुछ पता था, शायद हो सकता है कि प्रेशर की वजह से, या फिर यहाँ पर आ रहे हैं इतनी देर बैठे हैं बाहर, तो शायद इनका गलत आंसर निकल रहा, मगर नॉलेज तो है क्योंकि उनको पता है सर पेपर 1 एंड पेपर 2 हो गया है। अब वो एक चार्म देखना चाहते हैं आपका। एक बार आपको पहले तो इवेल्युएट करेंगे कि आपने पेपर दिया है कि नहीं दिया है, तो वो तो होगा ही। एंड सेकेंडली आपसे कोई एक ढंग का आंसर चाहते हो, एक ढंग का आंसर। ये मैं ओके अपनी सर। की तरफ से सोच रहा हूँ सर। मैंने मीन्स एज बीइंग एन एसोसिएट प्रोफेसर, मैं 15 बरसों से पढ़ा रहा हूँ, 15 बरस से मैं वाइवा ले रहा हूँ। और मुझे पता है कि ज्यादातर जब वाइवा लेने जाते हैं ना, तो एक माइंडसेट यही होता है, बार बार क्या एक ही इक्वेशंस करना, और बार बार क्या एक ही हम्म। आंसर सुनना। हमें कुछ कोई भी पर्सन से एक नई झलक मिलती है ना, एक नया, एक मीन्स एक ढंग का आंसर, नया इन द सेंस सही आंसर, बहुत पर्टिकुलर वे में। जैसे कि गौरव सर ने अभी बताया, इन्वेंटर का क्वेश्चन उनको हुआ कि क्या इन्वेंटर के कोई राइट्स होते हैं, नहीं होते हैं। अगर मैं उनको ये क्वेश्चन करूं कि क्या एआई इन्वेंटर के तौर पे ऐड किया जा सकता है एआई को एज पर सीआरआई गाइडलाइन, तो क्या आपका आंसर रहेगा प्रदीप पाल सर? इफ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, can सर AI नहीं become करा जा an सकता। inventor? Why not, sir? As per new CRI guidelines, why not? एज पर न्यूज यार, वो तो आइडिया नहीं, मैंने जस्ट लॉजिक लगाया। इन्वेंटर कैन शुड बी अ बस ह्यूमन, एक आप, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जी सर, तो वहां पर सीआरआई गाइडलाइन में क्या लिखा था पता है? Might be the AI cannot be the inventor of that particular application, but the person who create that AI, the person who created that Who AI created? might get credit of inventorship. आप उनकी इसमें ना उन्नत पंडित जी ने 4 जगह पर मीटिंग्स रखी थी, और उनकी 4 पीडीएफ्स है। वो चारों पीडीएफ्स आप अगर डिटेल में नहीं भी पढ़ना है तो ब्रीफली उसको एक बार चैट जीपीटी में डाल के देख लो भाई इसका क्रक्स मुझे दे दो, तो भी आपको ओके। दे देगी। थोड़ा सा ऐसा हट के। अब देखो, आंसर तो वही है, करेक्ट, हम्म। आपने देख लिया। आंसर तो वही है इन्वेंटर का, आपने आंसर भी सही दिया। बट अगर आप एआई का बता दो कुछ हम्म। एडिशन, तो मजा आ जाएगा उनको कि क्या बात है। और आप अगर उसको कोट करते हो, जैसे आप कोट करते हो, आपकी हैबिट है ये,
आपको अगर पूछा जाए कि पीसीटी एप्लीकेशन जो फाइल कर रहे हैं विद इन 6 वीक्स इंडिया में फाइल करने के बाद, क्या उन्हें फॉर्म नंबर 25 फाइल करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 25? फाइल करना पड़ेगा। इंडिया में पहली एप्लीकेशन फाइल की और विद इन 6 वीक्स अगर वो पीसीटी फाइल करना चाहते हैं तो क्या उन्हें एफएफएल लेना पड़ेगा? यस सर। हाँ, लेना पड़ेगा। हाँ, इतना आंसर। ये इससे इसकी जगह पर आप ऐसा बताइए ना सर, लेना पड़ेगा सर, पेटेंट मैन्युअल के अंदर ये आंसर दिया गया है। ओके, थोड़ा ऐड ऑन। मजा आ गया ना उनको कि भाई ये रेफरेंस भी बता रहा है उसके साथ में, और ओके वो सर। समझ जाएगा, एक ही आंसर से समझ जाएगा कि आप कितने थरो हो। ओके सर। एंड एक और आज मैं सोच रहा था, जैसे कल एक सर आए थे, उन्होंने क्या कहते हैं, अपनी लर्निंग शेयर करी थी। उन्होंने थोड़ा हट के कुछ करा था, अनुज क्योंकि रतुरी सर। हाँ हाँ। तो अगर जैसे वो सबसे पूछ रहे हैं कि व्हाई यू वांट टू बी अ पेटेंट एजेंट, अगर आप अपनी स्टोरी में, जो मुझे लग रहा है, आई वांट टू बी अ पेटेंट एजेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आफ्टर बीइंग अ पेटेंट एजेंट, as per this section I can do this, as per this I can do it, as per this I can support academic person, as per this I can support XYZ reason। अगर थोड़ा सा फ्लेवर डालू, बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 सेक्शंस का, सो दैट कि मेरा नेक्स्ट डालो ना क्वेश्चन उसी सेक्शन से आए, हाउ डू यू थिंक बेटर रहेगा, नहीं रहेगा? सर, बेटर ही रहेगा, मैं ट्राई बेटर करता हूँ ही फिर से। रहेगा। सर आपके केस में क्या होगा पता है, आपको उल्टा गौरव सर की तरह आंसर देना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। एप्लीकेंट कर सकता है सर, कर सकता है। इन्वेंटर के राइट्स को राइट्स होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि आपके मेजोरिटी चांसेस ऐसे हैं कि वो जो क्वेश्चंस करेंगे ना आपके पास आंसर्स होंगे। गौरव सर में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्या रही चीज, गौरव सर आंसर 50% करेक्ट दे पा रहे हैं, 50% में करेक्ट नहीं दे पा रहे। सर मैंने ज्यादा शॉर्ट दे दिया, जिनका पता था वो बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट कर दिया। और जहां पर नहीं आता है वहां पर आप डिटेल में जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। सर गौरव सर भी क्या करे, इनको पहले यही बोला गया कि जितना नहीं, सही है पूछा ना जा सर? रहा है उतना ही बताओ। सर सही है ना, बट अब ये जी। आज के दिन हाँ ये सर, मेरे लिए ये भी था बाउंड्री कि लाइन बनी इतना ना। पूछ रहे हैं कि इतना ही बताओ। मेरे लिए ये भी हाँ था सर, ना। तो आज ये बाउंड्री लाइन बनी ना, कि पता चला ना, आपके इंटरव्यू से एक चीज पता चली। क्या पता चली? कि अगर आप शॉर्ट में आंसर दे रहे हो तो आप वहां पर रुकते हो जहां पर आपको आंसर नहीं आता है, फिर आप उसमें हाँ ब्रॉड कर रहे हो। तो उससे अच्छा है वो जो क्रिस्प है उसको भी थोड़ा सा लेंदी कर दो। आपके केस में वो वैलिड है, मैं यही कहूंगा सर, जो आपको कहा जा रहा है वो आपके केस पे वैलिड है। मगर प्रदीप पाल सर को मैं फिर से कहूंगा कि सर आप अगर शॉर्ट रखोगे ना, उनको ज्यादा क्वेश्चन करने दोगे, भाई तेरे पास जितने क्वेश्चन आने दे, आप दे दोगे आंसर, मुझे लगता है कि आप दे दोगे, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। अगर उन्होंने पेटेंट साइड के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए ना, तो आप उतने ही स्पीड से आंसर दोगे जितने ही स्पीड से वो क्वेश्चन कर रहा है। और ये होगा अल्टीमेटली, आपकी जो जुगलबंदी बनेगी ना, वो उसको दिमाग में बैठ जाएगी कि भाई बंदा तो बढ़िया है, इसको सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो निकल जाएगा आपका। वो चार्म क्रिएट करना होता है, एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल क्रिएट करना होता है। जैसे दिनेश सर है तो दिनेश सर को तो फ्लो अपना उनको पकड़ के रखना है कि वो स्कीम्स पे लेके जाएंगे, कैसे भी करके वो स्कीम्स की तरफ लेके जाएंगे। वो अपना नहीं, इंट्रोडक्शन ही वैसे दिनेश सर का बनाएंगे कि कल मैंने सुना था, दिनेश सर का मुझे लगा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है दिनेश सर इंटरव्यू ये क्रैक करने के लिए। मैंने उनका वीडियो भी देखा था, कुछ ऐसा कुछ दिक्कत भी नहीं, हर चीज का आंसर था उनके पास, नहीं था मतलब हर चीज का आंसर है, पर वाई पेटेंट सिर्फ एजेंट बिल्कुल उनके पास तो बहुत कॉन्फिडेंट वे में। सॉलिड रीजन है। हाँ, सर सबसे सॉलिड लगा मुझे दिनेश सर का। सर एजुकेशन बैकग्राउंड प्रदीप से है सर ना। ये ओवर कॉन्फिडेंट है और कुछ नहीं है। अरे सर, नहीं 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 सर सर, और आपकी बोलने का तरीका, आप जब बात करते थे तभी से पता चल रहा है सर, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। वाइवा सर ये के कॉन्फिडेंस उसमें आप, रहेगा तो 10 से 12 मिनट का ये कॉन्फिडेंस चाहिए, बस इतने में ओवर है इंटरव्यू, बस 10 से 12 मिनट का गेम है, चक्कर ये है जिसके ना, लिए प्रदीप सर आता नहीं है ज्यादा, बस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ही है। आता है सर, वो आपको सिखाने की नहीं आदत आता पड़ी है। हुई है बस। दिनेश सर, हाँ, जी वो तो सर। जरूरी है। जी सर, रजत सर। जी। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अब सर कहाँ से आता है तो नॉलेज से हमें ही क्या आता है, मालूम। नॉलेज से ही जब आता है। आता है तब विदाउट नॉलेज हो ही नहीं कॉन्फिडेंस सकता आता है, है। हो ही नहीं सकता सर, बिना विदाउट नॉलेज हो ही नहीं नींव के सकता है। इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती ना, बिना सर नींव के इमारत हो ही नहीं सकती। चलिए, और वो आप कह रहे हैं तो कॉन्फिडेंस मान। सब बॉडी लैंग्वेज सर में दिखता सबके है। ऐसे सर 58 से 65 वाले हैं सब लोग, और सबका एकदम टफ ऑन केस वाला है इंटरव्यू वाला। अगेन 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 आई से,
2026 में 58 इन फर्स्ट पेपर इज इक्विवेलेंट टू 2022 या उससे पहले 70 प्लस इन पेपर वन। ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है मैडम। आप अगर इस Rather than फ्लिप को more. नहीं जानते हो, हाँ पेपर वन टफ है, अब पेपर टू इजी है और पेपर टू के स्कोर बढ़ रहे हैं। पेपर टू में पहले 50-50 ही आते थे सभी को, अब वैसा नहीं है। अब पेपर टू में आ रहे हैं सभी को 70 प्लस 80 प्लस आ रहे हैं, बट पेपर वन के स्कोर बहुत कम आ रहे हैं। और मैं और आपको ये एक और बात चेंज बताता हूँ, देखो अगर आप ये एनालिसिस करोगे ना, पेपर टू का स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है वो स्ट्रक्चर फेवरेबल है हमारे लिए, अनफेवरेबल नहीं है। माना स्ट्रक्चर चेंज हुआ, पेपर लेंदी हो गया, बट वो स्ट्रक्चर आपको बेनिफिट देकर जाएगा, बिकॉज 5 में से 3 या 4 देने की प्रथा है अगर आपके आंसर की लेंथ है। जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे ना, आपका स्कोर अपने आप ही बढ़ जाएगा। पेपर टू देखना इस बार, जो आप ये सोच रहे हो ना कि हम 58 पे बैठे हैं, 60 पे बैठे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट इस बार पेपर टू में ज्यादा स्कोर करेगा। नहीं सर, वो तो लास्ट 2 ईयर से हो रहा है, पेपर टू ही स्कोरेबल है सर। अब इस बार ये ट्रेंड बिल्कुल क्लियर दिखेगा। हाँ क्लियर दिखेगा, और वो है क्लियर सर। दिखेगा आपको। पहले ये चीज क्या मतलब दिखती नहीं थी, एनालिसिस हो नहीं पा रहा था। इस बार ये जो क्वेश्चन पेपर की लेंथ बढ़ी है ना, ये आपको फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगा। ये आपको बेनिफिट देगा। पेपर टू आपको इसलिए मैं अभी क्या होता है, जैसे कभी कभार सर कहीं से कॉल आता है या पूछते हैं सर कि पेपर टू की पेपर कौन सा टफ है या कैसे तैयारी की जाए, तो मैं ये आंसर करता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन मुझसे 23 से पहले पूछा होता ना, तो मैं बोलता पेपर टू टफ है। अब मैं बोलता पेपर टू इजी है। लिख के स्कोर निकालना आसान हो गया अब। क्योंकि आपने अगर कुछ ना कुछ लिखा है ना, थोड़ा भी आगे पीछे लिख दी है स्टोरी, भैया 5 नहीं, 4 नहीं, 3 तो देगा। एमसीक्यू में तो जो सही तो सही, गलत तो गलत, बीच की कोई कहानी नहीं बनती वहां पे। इसमें आप देखिएगा पेपर टू आपका सपोर्ट करेगा इस बार। एंड सर लेकिन वन मोर सर थिंग। रॉन्ग हुए तो जीरो भी आते हैं ना मैम पेपर टू में। देखो वो क्या होता है, वो तब आते हैं जब आपका क्वेश्चन ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो। और सर जो लैंग्वेज भी थोड़ी अलग थी नहीं ना, नहीं, तो समझ ऐसा में नहीं नहीं है, आ रही ऐसा थी। नहीं है, ऐसा नहीं है, इस पे मैं बिल्कुल डिनाई करूंगा। वो जीरो आपको तब मिलेगा जब बिल्कुल टोटली क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका एक ही पर्टिकुलर आंसर बनता है, और वो अगर आपने नहीं दिया। जो इस बार का फिलोसफिकल क्वेश्चन है ना, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, इनका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर नहीं होता। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, वो सेक्शन 15 का क्वेश्चन था डिजाइन का, सिंपल सेक्शन 15 का क्वेश्चन है, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। जिसने 15 लिखा वो फुल मार्क्स ले जाएगा, जिसने 15 नहीं लिखा वो कोई दूसरा सेक्शन लिखा डायरेक्ट जीरो मिलेगा उसको। ऐसे 15 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ये होता है 26 क्लोज एंडेड। का मेन था उसमें। हाँ मगर हाँ ये सारी हाँ। डिस्कशन से कोई आपका इंटरव्यू में कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, बट हाँ जनरली समझने के लिए। और ये मैडम समझिए कि जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, दिनेश सर भी इसमें हमें कहेंगे, यहाँ पर दो मॉडरेटर होते हैं, मॉडरेटर वन एंड मॉडरेटर टू। यानी जो हम पहले, जैसे कि मुझे 5 बरस का एक्सपीरियंस था, जब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं मॉडरेटर वन में था, जब मुझे पहली बार पेपर चेक करना होता था। तो मैं फर्स्ट टाइम पे, मैं भी यंग ब्लड हूँ, मैं भी किसी को फेल कर देता था। भाई फेल करना हमारे लिए शान की बात होती थी, मैं तो फेल कर देता हूँ, मैं ऐसे बोल के भी निकलता था। बट जैसे जैसे हम मॉडरेटर टू में आए, यानी जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा, 12-13 साल का एक्सपीरियंस हुआ, फिर हमें मॉडरेटर टू की तौर पे भी वहां पर रखा गया कि भाई अब जो मॉडरेटर वन पेपर जो चेक करते हैं, उसमें से दो कैटेगरी के पेपर हमारे पास आते हैं। नंबर वन कैटेगरी जिसमें 85% से ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं, तो उसे इवेल्युएट करना है कि क्या उन्होंने सही चेक किया है कि नहीं। दूसरा कैटेगरी होता है जो फेल किया गया हो बाउंड्री लाइन पे, बाउंड्री लाइन पे जिनको फेल किया गया हो, जैसे कि 50% मार्क्स है। एमई में भी ये सेम स्ट्रक्चर होता है, मास्टर डिग्री में आपको 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। कभी किसी को 40 आए, 45 आए, 48 आए, तो वो सारे पेपर्स आते हैं। आप क्या मानते हैं मैडम, मैं किस पेपर को थोड़ा सा ग्रेसिंग देके उसको निकाल देता हूँ बाहर, क्या करता हूँ मैं? 58 वाले को या 48 को सीधी निकाल बात है देंगे। ना मैडम, सीधी बात है ना मैडम। वो 85 वाले को मुझे हर्डल नहीं करना है, वहां पर मुझे चेक करना है कि भाई इसके कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं,
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका मैंने 2 मार्क्स कम कर लिया। बट मेजर में यानी जो मेरा ख्याल में होता है कि भाई जो 40 वाला है, चलो भाई अगर कुछ है ले देखे कहीं पर सही कुछ लिखा हुआ है, निकालो इसको भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। तो ये मॉडरेटर 2 आप देखोगे ना, ये किसी में था, एक पर्सन के केस में, हमारे ही बैच में है, रजत सर के ही केस में है, देख लो कि उनके मॉडरेटर 1 ने जो भी मार्क्स दिए थे उससे ज्यादा मार्क्स मॉडरेटर 2 ने दिए हैं कि भाई बढ़ाओ इसके मार्क्स। और यही माइंडसेट होता है मैडम। तो डोंट वरी, अगर आपके मॉडरेटर 1 ने भी अगर मार्क्स कोई ऐसे दे दिए हैं, वो एक ही पेपर था अखिल सर का ऐसा जहां पर मैंने देखा कि मॉडरेटर ने कुछ नहीं किया हो। बाकी अगर वो मॉडरेटर 2 के पास जाता और मॉडरेटर 2 अगर एक्सपीरियंस्ड है, वो 10-15 बरस इस फील्ड में रहा है, उसने देखा है कि किस तरीके से ये 2-4 मार्क्स की वजह से पूरी लाइफ खराब होती है लोगों की, तो वो मैडम देगा ही देगा मार्क्स। तो मेजोरिटी इवेल्युएटर मेरी तरह होते हैं, कोई कोई निकल भी आते हैं खड़ूस, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट आप बताइए, आपका भी अगर आपने यहाँ तक देखा है, सभी ने आरटीआई करके पेपर दिया है, आप बताइए कितने पेपर आपने देखे जहां पर 0 दिए गए हैं? कितने पेपर ऐसे थे? 1 और 2, हार्डली 1 और 2, इतने सारे कैंडिडेट्स में से उससे ज्यादा आपने देखे जहां पर लिखा हुआ है फिर भी 0-0 स्कोर दिया है? हाँ सर। हेलो, नहीं वो सर। तो हो ही सकता है मैडम, ये तो पूरी वो है इवेल्युएशन साइकोलॉजी, उसमें कुछ नहीं हो सर एक सकता। एक और क्वेश्चन है इंट्रो को, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम्म। मैक्स टू मैक्स 40-50 सेकेंड का, उससे ज्यादा का नहीं। क्या मगर आपने इंट्रो बना के भेजी है ना, एक साक्षी मैडम ने भेजा है, मैं देख रहा हाँ हूँ, बट सर हाँ, मैं आपको वो भेजता बना। हूँ, मेरा रेडी है। मैं उसमें लास्ट फाइनल एक कंक्लूजन है, लाइक एजुकेशन बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, किस फील्ड में मैं डोमेन में काम कर रहा हूँ, और एक छोटा सा 1.5 लाइनर और 2 लाइनर मैं पेटेंट एजेंट क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकें कि उस पर रीजनिंग चाहिए। मैं उसमें पूछाऊँ कि अगर हमारे करियर की कोई एडिशनल अचीवमेंट है, कोई एग्जाम बहुत अच्छा क्रैक करा हुआ है, एक 1 लाइनर डाल सकते हैं, या डाल ऐसा सकते हो हैं। जाएगा कि ओवरडू कर रहे हैं हम? नहीं नहीं सर, डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए तो, आपको तो ओवरडू करना चाहिए, आपको तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। आप उस पोजीशन पे हो सर। सर देखो, अब तो यार सही बात है, अब जो ट्रम्प है तो ट्रम्प अपने एडवांटेज नहीं ले रहा है, गलत है तो गलत है, मगर वो एडवांटेज ले रहा है, लेना चाहिए आपको सर। वाई वाई यू आर सेइंग। ओके। और दूसरी चीज सर, सभी के लिए, या आपके लिए नहीं, देखिए, वो ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्ट बना के रखना ठीक है भाई, वो चीज होती है, सही है भाई, वो भी एक स्टेप है प्रिपरेशन का। बट सही प्रिपरेशन तो उसे ही मानी जाएगी कि वीडियो ऑन करो और बोलो। क्योंकि ड्राफ्ट एग्जीक्यूट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, कुछ नहीं है, कुछ भी भूल जाओगे। ड्राफ्ट में लिखा होगा 10 पॉइंट, 9 पॉइंट बोल के आ गए, 1 पॉइंट मेन पॉइंट भूल गए। मगर जब आप वीडियो बना के जो सेंड करते हो, तो पता चलता है कि हाँ आप यही चीज बोलने वाले हो, 90% श्योरिटी मिलती है कि वही चीज आपसे डिलीवर होगी, बिना देखे बिना पढ़े। बस वैसे ही कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। व्हाट डू यू थिंक रजत सर? सर परफेक्टली सेड। जब तक आप एक बार बोलोगे नहीं ना, तो वो फ्लो, वो कॉन्फिडेंस और वो जो वर्ड्स के ऊपर पकड़ होती है ना सर, वो नहीं आती है। होता क्या है, हम लिखते तो बहुत अच्छा है, जब बोलने की बारी आती है आधी लाइनें भूल जाते हैं, वो बिना बोले नहीं आएंगे। इसलिए ना दिनेश सर का ये पार्ट बेटर है। दिनेश सर कभी लिखने में उनको प्रॉब्लम आती है, वो बोलेंगे बोल दो, मुझे बुलवा दो, कितना भी बुलवा लो, मगर मैं लिखूंगा कुछ नहीं। तो उनका पार्ट ये प्रिपेयर्ड है कि भाई अब उनको बोलना है, डिलीवर करना है तो डिलीवर कर देंगे, लिखना काम है उनको। और वो ज्यादातर हो ही जाता है, एजुकेशनल में जो भी रहते हैं वो टिक मार्क ज्यादा करते हैं, मार्क्स दे देते हैं, मगर वो नहीं बताते हैं कि क्यों ऐसा दिया। वो इवेल्युएशन अपने पास ही रखते नहीं हैं। नहीं सर, मैं ऐसे ही बात नहीं, लिखने में भी मैं हूँ प्रो, पर ये है कि अभी आदत छूटा हुआ था, तो वो जो है जागृत करा दिया रजत सर ने। सर को जाता है श्रेय। सर ये, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लिखना वैसे भी कम हो जाता है सर। जो अब कम हो जाता कॉलेज के है। लेवल पे लिखते हैं वो थोड़ी ना अभी लिखेंगे, अब मेरा बेटा लिखता है, अब मैं थोड़ी लिखूंगा इतना ही उतना। तो वो तो होता है। बट हाँ सर, जैसे ये आदत कम होती है तो एक्सप्लेनेशन अपने आप बढ़ जाता है। लिखने की आदत जैसे ही कम होती है, बोलने की आदत उतनी ही अपने आप बढ़ जाती है। करना दोनों में से एक चीज तो करनी ही पड़ती है एजुकेशन में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। करेक्ट। तो बस इंट्रो आज में सर, हमसे, इंट्रो में क्या हम अपने आप ही बता सकते हैं कि व्हाई डू वी वांट टू बिकम पेटेंट एजेंट, या उनको पूछने दे पहले? सर
आपको भी पता चल जाएगा, दुबला पतला स्माइल फेस वाला आदमी है, बता दो। कोई ऐसा टीडीएस फेस वाले महिला है, मैडम है, या कोई ऐसा सर है खड़ूस मुंह वाला, मत बताओ, उसको पूछने दो। वो तो सर, देखिए ये तो सर वो है बात कि आप मुझसे पहली बार मिले तो आपने हंस के बात की थी या स्ट्रिक होके बात की थी। आपने भी मेरा मूड चेक किया, कि मैं कैसा बंदा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस तरीके से बात को रख रहा हूँ। आपने भी उस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है। इट्स अ कम्युनिकेशन सर, ये कन्वर्जेशन है। और कन्वर्जेशन की टैक्टिक्स ऐसे कभी प्री डिफाइंड नहीं होती है कि मैं ये बोलूंगा, ये करूंगा। हम इसको बना रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, बट ये कभी भी वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वो नहीं इम्प्लीमेंट होता। वैसे ही होगा जैसे ही वो पर्सन को देखोगे, जैसे वो 3 पैनल्स बैठी है, उसमें से क्या आपको समझ में आ रहा है, उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। 3 होते हैं अगर या आप 4 होते हैं? सर 5 भी होते हैं वैसे, चार चार में एक जो आपके टेक्निकल डोमेन से होते हैं, और 3 होते हैं जो वहां से आते हैं, पेटेंट ऑफिस से। बट उससे पहले 3 भी थे, और 3 में से 2 पेटेंट ऑफिस से थे और एक टेक्निकल डोमेन से थे। ऐसे भी होता है। और टेक्निकल डोमेन हर एक डोमेन का नहीं होता है, वो फार्मास्यूटिकल से ज्यादा लोग मंगवा लेते हैं। ये जो साइंटिफिक एडवाइजर वाले क्वेश्चन होंगे ना, ज्यादा वही बैठे होते हैं होंगे। सर फार्मा में। हाँ मैडम, वो तो सही है ना, तो गलत भी क्या है। और ये साइंटिफिक एडवाइजर को भी कहाँ तो यूटिलाइज करना ना भाई, यहाँ पर भी करो, क्या फर्क पड़ेगा। कोई खाली ना बैठे गवर्नमेंट में। मैडम क्यों बैठना चाहिए? अगर ये ऑटोनोमस बॉडी है और इसी तरीके से इस बॉडी को वर्क करना है, क्यों खाली बैठे? हम भी क्यों खाली बैठे? हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमें थोड़ी ना गवर्नमेंट ने बाउंड किया है कि जयवीर सर आपको पैटर्न एजेंट बना दिया, रजत सर आपको पैटर्न एजेंट बना दिया, जाओ कोर्स करवाओ। हम भी कर रहे हैं ना, अपनी मेहनत इसी फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, पेटेंट फाइल कर रहे हैं। ये जो अभी पार्थ सर आए थे, आप इनको क्या समझ रहे हैं? पूरी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जितने भी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में से पेटेंट्स ग्रांट होते हैं, जो स्टूडेंट्स ग्रांट करते हैं, वो सारे अप्रूवल्स ये लड़का देता है, इतना छोटा सा लड़का। ये मेरे जितना ही है, बट इतना पावर है इनका, वो खुद करवाते हैं सारी चीजें। इससे पहले इन्होंने जीटीयू में काम किया है, मोर देन 500 पेटेंट्स इनकी फाइल्ड है, वो खुद फाइल कर चुके हैं। 200-300 ट्रेडमार्क्स कर चुके हैं, अभी भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। बहुत स्कोप है मैडम जीआई इसका, एजेंट भी है, ट्रेडमार्क भी है, पेटेंट भी है। सब कुछ है, सब कुछ है। और आप उनको जो प्रैक्टिकल, अभी तो आपने क्वेश्चंस नहीं किए, प्रैक्टिकल केसेस भी आप उनको कहते हैं ना, तो अगर उनको पता होता तो आपको कंट्रोलर के नाम के साथ के यही, आप अगर वो बोलते कि भाई ये डोमेन की पेटेंट, तो बोलेंगे ये शायद ये कंट्रोलर ही आएंगे। और वही आते हैं उनकी हियरिंग में। तो इतना उनका वास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है। वो अनुज रतूरी सर का तो और वास्ट है, उन्होंने तो 2-4 यूनिवर्सिटी पकड़ ली थी। मैं उनके साथ एक यूनिवर्सिटी के पेटेंट फाइलिंग में था, जिसमें उनको 700 पेटेंट्स मिले थी फाइल करने के लिए, एक यूनिवर्सिटी से 700। वैसी उन्होंने 3-4 यूनिवर्सिटी पकड़ के रखी है, ढेर सारी पेटेंट्स फाइलिंग आ रही है। इतनी है मैडम, अगर आपने एक सही जगह पकड़ ली, यहाँ पर मुझे तो ये लग रहा है मैं सही जगह पर नहीं हूँ, वो भी मुझे पता है। मीन्स सही जगह नहीं, मीन्स वो ड्राफ्टिंग वाले डोमेन में। तो अगर उधर आपने एक जगह सही पकड़ ली, तो अब आदि सर देख लो, ये अपने ये भी सर तो है ही, प्रदीप पाल सर तो है ही, काफी लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये अपने आप चलने वाली, यानी कोई गवर्नमेंट, आपका जो क्वेश्चन था, ये कोई गवर्नमेंट बाउंडेड नहीं है, ये सारी चीजें अपने आप चल रही है। यानी प्रदीप पाल सर अपने कस्टमर खुद लाएंगे, कोई गवर्नमेंट उसको देने वाला नहीं है, वो खुद आते हैं यहाँ पर, और ये फील्ड ही ऐसा है। यहाँ पर नहीं, वेस्टर्न कल्चर में भी ऐसे ही वर्क कर रहा है। बट ये सारे डिस्कशन से मुझे नहीं लगता है कि आपको इवेल्युएशन के बारे में देखना चाहिए, या आप फ्यूचर में क्या करेंगे उसके बारे में। अरे प्रिपरेशन इंटैक्ट रखो ना, रिवीजन करते रहो, और छोटी छोटी बातें यहाँ से जो समझ में आ रही है, हर एक इंटरव्यू लेने के पीछे का तात्पर्य क्या है, हर एक पर्सन को एक बार सुना जाए, और सुनने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस पर्सन को, जैसे कि मैं कहूं कि क्या गौरव सर इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे वो अच्छा रहेगा, नॉट फ्रॉम माय साइड। मैं चाहता हूं कि ये हिंदी में दे। प्रदीप पाल सर कोई भी मोड में दे दो, ज्योति मैडम कोई भी मोड में दे दो, दिनेश सर कोई भी मोड में दे दो, शीतल मैडम, सर ने, रजत सर ने कहा है कि हिंदी में दे, मैं कहता हूं कोई भी मोड में दे दो, क्योंकि वो बेंगलोर के साइड से है, बेंगलोर में ज्यादातर वो सामने वाला बंदा हिंदी समझेगा कि नहीं, उसकी प्रॉब्लम है। तो अपने आप से वो चीजें सामने आती है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो पता चल रहा है कि आप कहाँ पर फंस रहे हो, आपका लेकुना कहाँ पर है।
और वो पहले से पता चल जाए, उतने पर्पस के लिए ही ये मॉक वाइवास लिए जा रहा है। जितना आप इसको रिटार्ड करोगे उतना ही चीजें प्रॉब्लमेटिक। आपके यहाँ साक्षी मैम, आपको पता चला ये पॉलीमॉर्फ, जी द सर, बहुत सारी मोमेंट चीजें। कैसे दोनों के दोनों पैनलिस्ट भी, आपका तो लक ही इतना अच्छा था कि दोनों पैनलिस्ट यस सर। दीपिका जुन मैडम एंड गीताली मैडम और साथ में आप, तो उन्होंने सर। डायरेक्टली क्वेश्चन ही वहां से फील्ड से पूछ लिया। तो आपको एक हिंट मिला कि भाई पॉलीमॉर्फ पे जाएंगे ही जाएंगे। अगर वो पैनलिस्ट आ गया तो आप मान लीजिए कि आपका 40 प्लस पक्का है, अगर वो वहां पर गए तो ये चीजें क्रैक करो। कल जो बताया था वरा प्रसाद सर ने, वरा प्रसाद सर ने क्या बताया था कि ये अगर ड्राइंग के अंदर कोई एक एलिमेंट को डिफाइन किया गया है और उसे क्लेम के अंदर रखा गया है, तो क्या वो क्लेम में चलेगा? तो हाँ चलेगा, क्योंकि ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिकेशन। उन्होंने ये आंसर दिया था। पर्टिकुलरली वो आप चीजें ऑब्जर्व करो, वैसे क्वेश्चंस वैसे आंसर। उन्होंने भी क्या कहा कि मैंने जब ये आंसर दिया ना तो उनको बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने बहुत फॉर्म नंबर 5 का आंसर उनको नहीं आया था। फॉर्म नंबर 5 क्या होता है वो उनको नहीं पता था। उनको क्या एक आंसर चाहिए था अच्छा वाला, तो उन्होंने क्या अपना दिमाग यूज करके वो आंसर दिया कि भाई डिजाइन के अंदर दिया है ना, ड्राइंग के अंदर दिया है, तो ड्राइंग के अंदर जो लिखा है इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिकेशन, फिर आप उसे क्लेम कर सकते हो। उसके लिए कोई एडिशनल डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। वेरी वेल सेड। और उन्होंने कहा भी कि मेरी उसी वजह से मेरा आंसर सही निकला। अनुज रतूरी सर ने क्या कहा कि अपनी स्ट्रेंथ पे बात करो। अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए उन्होंने भी अपने पेटेंट एप्लीकेशन जितने फाइल थे लेके गए थे। वो आदि सर भी लेके गए थे। लेके जाओ भाई, लेने अंदर जाने दे रहे हैं उसके साथ, ठीक है, नहीं दे रहे हैं ठीक है, मगर एटलीस्ट एक पेज में एक समरी बना के जाओ। पूरी फाइल लेके नहीं, एक पेज में सिंगल लाइन समरी, सर ये है मेरी पेटेंट्स। आप इतना लैंडस्केपिंग का वर्क कर रहे हो, कुछ एक दो एग्जांपल्स अभी की जो रिसेंट हो लेके जाओ, ये मैंने एक दो काम किए हैं सर। अच्छा लगेगा उनको कि जिनको हम पेटेंट एजेंट बना रहे हैं वो पेटेंट को प्रमोट करेंगे, वो पेटेंट की फील्ड में वर्क करेंगे आगे। एज सिंपल एज दैट। इतना बड़ा नहीं होता है कि वो फेल करने बैठे हैं। वो लोग फेल करने नहीं बैठे हैं, बट हाँ उनको पता नहीं है आपके मार्क्स, और आपका प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपकी मार्क्स की वजह से कि 58 प्लस 50 118, अब मुझे 32 चाहिए ही चाहिए। ये प्रेशर आपके दिमाग में क्रिएट करवा रहा है। 108 सॉरी, यानी 42 चाहिए ही चाहिए। और वो सही बात है कि क्या वो 42 मार्क्स देंगे आपको, क्योंकि वाइवा के इवेल्युएशन में 40 प्लस मार्क्स मिलना वेरी टफ। तो अब आपका जो थॉट प्रोसेस बन रहा है वो ये है कि कैसे हम उनको ये रियलाइज करवा दें कि मुझे 40 प्लस मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए आपको अपना एक एडिशनल स्ट्रेंथ बतानी ही पड़ेगी। वहां पर आप यूजुअल वाइवा अप्रोच से नहीं जा सकते, वो रिस्क लेना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग क्या? नहीं, मुझे भी पता नहीं है, बट वो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा 40 प्लस जाने के लिए। वो नॉर्मल वाइवा नहीं रहता है। 40 प्लस जाने के लिए एडिशनल वाइवा चाहिए ही चाहिए। और एडिशनल वाइवा तभी होगा जब आप अपनी एडिशनल क्वालिटीज बताएंगे। वो रिस्की होता है, उसके बाद वो कहीं पर भी जा सकता है। ओके ओके सर, आप अपना कोड दे दीजिए सर, हम भी जा ही रहे हैं, हम भी निकल ही रहे हैं। आप अपना फाइनल कोड दे दीजिए, फिर हम भी निकल। फाइनल कोड सर आपने दे ही दिया है हालांकि। बाकी देखो, प्रदीप पाल सर जो है वो रिस्क ले सकते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं ले सकते। आप अपनी नॉलेज पे, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। बस प्रिपेयर करो, प्रेशर मत लो कि यार इसको कैसे फ्रेम करे, उसको कैसे फ्रेम करे। फ्रेमिंग नहीं समझ में आ रहे, बी रियल। सर मेरे जो डोमेन है, मैंने इतने साल काम किया है, बट जैसा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस हो रही हैं, सो आई थॉट कि इसी से पैरेलल एक डोमेन को मैं इवेलुएट कर रहा हूँ, अपनी स्किल्स में ऐड कर रहा हूँ और उसमें वर्क कर सकता हूँ। बस सिंपल। आप उतना फेक मत बनो यार, मैं बस ये सिंपल। वाइवा में फेक बनोगे वो लपेट देंगे। उनको पता है, वो बहुत मतलब तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, वो एंटर करते ही समझ जाते हैं बंदा कैसा है। मगर इन द ठीक है। सिमिलर मैनर ये भी बात याद रखो, सारिका मैडम से लास्ट टाइम क्या गलती हुई थी? सारिका मैडम आपकी, सारिका मैडम है यहाँ पर, मैडम का इंटरव्यू सबसे अच्छा गया था।
सबसे अच्छा गया था। मगर मैडम है ना बहुत प्योर है, मैडम ने ये बोला नहीं कि सर मुझे 40+ मार्क्स चाहिए अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा है। आप देख लो अहमदाबाद के पैनल में जितने कैंडिडेट्स थे उसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स सारिका मैडम के, और उन सारिका मैम पैनल के ने इतने कंजूस पैनल थी कि उन्होंने 35 हाईएस्ट मार्क रखे थे। 35 से ज्यादा मार्क्स ही नहीं है किसी को। मांगो ना, क्या जा रहा है? अरे भाई मांग के मिल जाए, मिल गया, अगर नहीं मिला तो नहीं सर, फिर नहीं मांगो यानी पहले से मत मांगो। नहीं अगर नहीं, आपका पहले इंटरव्यू ही। दिख रहा है कि बेहतरीन हाँ जा रहा है, बोल दो भाई, बोलना ही है फिर तो। बस, बल्कि उस चीज को देखो कि कैसे बीच में लाके बीच में से एकदम सरका देना हाँ, आगे। हंसा हंसा के बोल दो सर हाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ तो आता है मुझे, कैसा रहा मेरा इंटरव्यू? बोलेंगे बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा दिया। सर वैसे तो इंटरव्यू अच्छा जाता है, मैं पिछली बार भी 1-2 मार्क्स से रह गई थी, और लास्ट टाइम थोड़ा सा ये हुआ था कि 35 हाईएस्ट आए थे और मुझे ही आए थे। थोड़ा सा अगर 1-2 मार्क्स ग्रेस मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है। अरे सर मैडम ऐसा बोल ही बोल देना है, सकते हैं। नहीं मैडम सर, बोलना मैंने ही पड़ेगा। उनको बोला था कि सर आ तो रहे, आपका अच्छा गया। सर ने बोला, मैंने बोला सर और आप पूछो मुझे जो भी आपको पूछना है हम्म वो चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे थोड़े फर्स्ट पेपर को कम मार्क है, तो आपको मार्क देने के लिए इजी, ऐसा नहीं बोला मार्क देने के लिए, लेकिन बोला कि आई एम नॉट हम्म सेटिस्फाइड, आप और पूछ सकते हैं मुझे, आपको आपने जो भी। अपनी आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बोली कि आपको मार्क्स कितने चाहिए थे? नहीं सर, बस मार्क मैम, कितने चाहिए बोले। पता है तो उनको कहाँ से पता चलेगा? से 35 चाहिए थे मुझे, उन्होंने 34 दिया था। मैडम गीताली मैडम थे ना, गीताली मैडम ने क्या बोला, हाँ आप पैनल में थे, उन्होंने बोला मैं तो बोल के आई 40+ चाहिए चाहिए। अच्छा इंटरव्यू गया, मैं बोल के आई उनको, ऐसा बोला उन्होंने। आप अब सुनिएगा उनकी बात, क्योंकि अच्छा इंटरव्यू जाने के बाद आप पूछ सकते हैं, ऐसी बात रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है उस कम्युनिकेशन पे कि आपकी कन्वर्जेशन कैसी हुई है वाइवा में। मगर अच्छी हुई है तो अपना इम्पैक्ट रख के आओ कि सर ये तो मुझे चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर वो लाइन बोलने की वजह से अगर मुझे कम दे दिए तो, अरे जब अगर अगर उसको कम ही देने होते तो वैसे भी वो कम ही देगा। और अगर 1-2 मार्क्स से पीछे रह जाते हो, इससे तो अच्छा है कि 10-12 मार्क्स से पीछे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर क्लियर करना है तो ये लाइन बोलनी जरूरी है। अगर क्लियर करना है तो 42 चाहिए सर। 42 के लिए आप अगर कुछ ऐसा मैं कर सकूं जो आपको अच्छा लगे, तो मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। मेरा आंसर आ सकता है, आप पूछिए क्वेश्चंस, जैसे जैसे सारिका मैडम ने कहा, बोल दीजिए सारिका मैम, 42 आ गया, आपका काम हो गया। जी सारिका सर। मैम, हाँ आपको मान लो आप घर से बाहर गए हो, मेजर शॉपिंग करने गए हो, कपड़े खरीदने गए हो, हाँ, आपको बेटे के लिए ड्रेस पसंद आई, तो ले लूंगी मैं सर। आप मोल भाव करते हो? हाँ, कैसे करोगे? चलो 1500 की शर्ट है, आप मेरे से 1000 रुपये में लेनी है आपको, कैसे करोगे? 500 से स्टार्ट करूंगी। सर ऐसे बोलने से नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा सर एंड यही में? चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अगर आप हम्म, ये बोलोगे ना कि कम कर दो, ये कर दो, करेगा मैडम ले लो 100 रुपए का डिस्काउंट। आपने अभी क्या बोला? मैं 500 से शुरू करूंगी। वो नंबर जो फिगर होता है ना, वो नंबर क्लियर होना चाहिए सामने वाले को। अगर आप ये हम्म, बोलते हो ना कि मुझे मार्क्स, आप क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है कि मुझे मार्क्स चाहिए, बट कितने मार्क्स चाहिए ये आपको सेट करना पड़ेगा उसके माइंडसेट में आपको, कि सर मुझे हाँ 40+ चाहिए, 40 से कम में तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। तो उस रिगार्डिंग से अगर आप और कुछ पूछना चाहते तो प्लीज पूछ लीजिए, बट वो एक माइलस्टोन, आपको एक नंबर फिगर सेट करना पड़ेगा उसके माइंड में कि भैया मुझे मिनिमम 40 तो चाहिए ही। ओके। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर अगर 42 आ गए ना, तो अगर मेरे पेपर 2 में 50 भी आए तो भी मैं क्लियर कर लूंगी। तो अगर इतना दे ओके। सकते हैं सर तो मेरा कंफर्म हो गया, अगर श्योर हूं बस मैं यहाँ से। बाकी मुझे ज्यादा ही आएंगे, आ भी सकते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा पेपर 2 का। बट सर फिगर, अभी के लिए ये एग्जैक्ट फिगर बोलो कि सर इससे कम में तो काम चलेगा ही नहीं, इतना मुझे स्कोर चाहिए। है। इसके रिगार्डिंग अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते तो पूछ लीजिए। पूछ लो। और साक्षी मैडम, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। बट अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ तो आप क्लियर ही वहां से निकल गए, निकलने से पहले आपको कंफर्मेशन है। हम्म और अगर आपका नेगेटिव हुआ तो वैसे भी वो नेगेटिव बंदा है, वो आपको और कम कर देगा। आप 148 आने वाले थे, आपको आया 140, क्या फर्क पड़ जाएगा? जी सर। 149 आए या 140 आए, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? 150 आना जरूरी है। बस सर मैंने एक इंटरव्यू दिया था
मेरा PSU क्लियर था, मैंने साउथ का दिया था इंटरव्यू। तो उसमें 5 पैनल बैठे हुए थे, मतलब एकदम राउंड हाँ 6 थे शायद। हाँ। और जब मैं गई तो मैं बहुत घबराई हुई थी। तो उन्होंने सबसे पहले, मैंने गुड मॉर्निंग वगैरह बोला तो उन्होंने मुझे पानी दिया। कहते कि हैव सम वाटर, यू सीम क्वाइट नर्वस। तो फिर हमने पिया। कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू ईट यू अप। हमने मैंने ये ब्रेकफास्ट कर बोला। लिया। सर वो, हाँ, सब मैंगलोर में दिया था। तो उसके जी बाद जी। मैं सेलेक्ट भी हो गई थी, बट उसके बाद उन्होंने बहुत ईज डाउन करा था। सीनियर मेंबर्स ही थे सारे, उन्होंने बहुत ईज डाउन करा था। फिर उसके बाद बट उन्होंने जब ये लाइन बोली, दैट आई एम वी आर नॉट गोइंग टू ईट यू अप, बी काम एंड बी पेशेंट, तो हाँ, हो गया ना, एक फनी मोमेंट क्रिएट हो गया। हाँ, फिर वो इंटरव्यू इजी जाता है। फिर ट्रैक पे आ गया था, मतलब वो मैम जो। इतनी प्रिपरेशन के बाद ना ये सब कहानी है और कुछ नहीं है, सब डिस्कशन। इतनी प्रिपरेशन करके बैठे हो, सर कहाँ लगे पड़े हो, प्रिपरेशन वाइवा का क्या नहीं है, होगा, वाइवा मैंने होगा। तो एक ही क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं दिया था, ओनली वन क्वेश्चन। चलता है, उतना तो होना तो भी भी चाहिए। सर फिर मार्क नहीं देते ना, इस तो प्रॉब्लम है। मैडम वो मार्क्स दिए नहीं, हम ऐसा बोलेंगे कि हमने मार्क्स लिए नहीं। अब नहीं से सर, हमारा स्टेटमेंट ये हाईएस्ट होगा। में कम देखिए, है हाँ नहीं तो ऐसे भी। बोलेंगे, सब लोग मुझे पूछ नहीं बोल रही। लेंगे, हाउ सर, हाँ हाउ तो डिड माय इंटरव्यू गो, ऐसा करके। कैन आई एक्सपेक्ट दिस हाँ मच, ऐसे करके पूछ लेना सब हाँ, सर, लोग। कैन आई रिक्वेस्ट यू वन प्लीज थिंग? सर, आप मत इफ पूछना। इफ माय ऐसा ऐसा बोलना है, कैन आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, इफ माय इंटरव्यू गोज वेल देन आई कैन आस्क वन क्वेश्चन। वो बोलेंगे हाँ हाँ बोलो। फिर एक क्वेश्चन पूछ लो कि सर आपने जो ये क्वेश्चन पूछे थे उसमें से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। सर वेरी नाइस है सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सर वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, कैन आई आस्क? वो बोलेंगे हाँ। सर मेरे पेपर वन में इतने हैं, सारे पेपर 30 टू लोग के यही अब। पूछेंगे तो वो समझ और जाएंगे। मैडम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमारे जितनी कोई प्रिपरेशन नहीं करता है, आप ये भूल जाओ। ये इतनी डिटेलिंग में पंचायत ये बैठा के डेली बेसिस पे कोई नहीं करता है। वहां पर देखोगे ना, हार्डली 5% लोग ऐसे बात करेंगे और कोई नहीं करेगा, इतना ज्यादा। हाँ वो। देखो, मैम मैं इतना श्योर हूँ, जब तक वाइवा का नोटिस नहीं आया ना, लोग प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किए होंगे अभी तक। तो वो सर कब करिएगा तक मैडम। आएगा? अरे नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। क्या? मैंने उन्नत पंडित जी से बात की है, उन्होंने कहा है कि जयवीर तू बोलेगा तब मैं कल के कल डाल दूंगा। बस तू बोल सिर्फ मुझे, अब मैं बोलूंगा कि सर हमारे कैंडिडेट रेडी है। सर वो भी लाओ इट गुजरात बेटा। यूनिवर्सिटी के है ना? हाँ भावनगर से। तो अरे मैडम आएगा, जब आएगा तब आएगा। अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। बट क्यों इतने वरीड हो, वो सारी टेंशन मत लो। सेशन अभी, अब कल सेशन नहीं है, परसों संडे एंड मंडे 2 सेशन रखे हैं। संडे को सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक, एंड मंडे को रात को 9:45 बजे से 10:30 11 बजे तक। वहां पर हम पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट को रिवाइज करने वाले हैं। वही ठीक है हमारा सर। जो पीछे वाला जो टास्क था, सेक्शन, कीवर्ड, फॉर्म, फीस, टाइमलाइन, लाइकवाइज, जो हम चला आ रहा है ट्रेडिशनली, उसी चीज से करेंगे। तो जितने भी लोग आएंगे उनके साथ ये रिवीजन होगा, रिवीजन करना खूब जरूरी है। एंड साथ में उससे पहले आप अपना आ, एक वीडियो बना के इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल सर रहेगा। सर सर वन एड ऑन, जब हम ये रिवीजन करेंगे, मेक श्योर हर डोमेन के लिए कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करें। तो लाइक हम डोमेन फार्मा को के भी लिख लिए। देंगे ना उसके अंदर, उसके अंदर तो हाँ डोमेन लिख देंगे, एक डोमेन का एक स्पेसिफिक ऐड कर देंगे। हाँ, एक ये कॉलम। इस फार्मा के लिए है, ये केमिकल के लिए है, ये मैकेनिकल के लिए है। इट विल बी अ एड ऑन। जी सर, सर, हम डोमेन स्पेसिफिक जाएंगे। प्रदीप सर, हाँ सर। 3F को कैसे डिफाइन करोगे, कौन से डोमेन में जाएगा? नहीं सर, जैसे अभी पिछले से करो तो, पिछले केस में हुआ था, कर, जैसे वो करो तो, करो अरे तो, वो आइसोमर्स एग्जाम्पल मॉर्फोल। एग्जाम्पल चाहते हैं। अरे करो तो। सर अभी याद नहीं 3F, क्योंकि बहुत टाइम से रिवीजन नहीं कराया है कौन सा है। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। सर रीअरेंजमेंट तो सर कहीं पे भी आ जाएगा, वो मैकेनिकल में भी मैकेनिकल में भी आएगा, आ सकता है ना, डिवाइस का सॉफ्टवेयर में भी आएगा, वो हर करेक्ट। जगह आएगा। रीअरेंजमेंट है, कोई भी दो इन्वेंशन का रीअरेंजमेंट है, वो केमिकल में भी आएगा। मैंने हम्म कंपोजिशन जो वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट कराया, वो भी हो सकता है। हम्म
और बट पूरे एक वो पूरे माइंड में ना, पेटेंट एक्ट में कितने सेक्शन है जो डोमेन स्पेसिफिक है? सर मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करा था, ज्यादा नहीं है। बट मेरा एजेंडा ये है कि प्रदीप सर, वहां पे जो एक थॉट बात प्रोसेस बोलूं? में टाइम लगेगा ना, प्रदीप लोग सर, हैबिचुअल हो जाएं कि ऐसा कुछ आ गया जो हमने अभी डिस्कस करा, इट्स अ मतलब फ्री मार्क। आप मान रहे हो? प्रदीप सर, एक बात बोलूं? हाँ सर। आज के समय में ना आपको चैट जीपीटी से ज्यादा पेटेंट एक्ट आता है। हाँ सर वो तो आप मुझे अभी बताओ सोच के, कितने सेक्शन है जो डोमेन स्पेसिफिक है? मैक्सिमम तो 3 वाले ही हैं, और एक 4 एटॉमिक एनर्जी का है, उससे अलावा तो ज्यादा और कुछ नहीं है। और मैं पता है और क्यों बाकी क्वेश्चन पूछा? 35 और 64 मैं में ये जो क्वेश्चन मैक्सिमम क्यों आते हैं पूछा वो। आपसे, ये मैं क्यों पॉइंट आउट करवाया? ये सब टास्क ना आप प्रेशर के कारण ये ले रहे हो, ये टास्क को कोई मतलब नहीं है। करने में कोई बड़ी बात नहीं है कि हम करना नहीं चाह रहे हैं, बट अभी क्या हो रहा है, ओवर प्रोसेसिंग हो रही है वाइवा को लेके माइंड में सबके। ओके 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 सर, समझ गया। मैं वो मुझे ना थोड़ा पता नहीं क्यों है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार खुल के नहीं खेल पा रहे हो आप लोग, जकड़ रहे हो अपने आप को। क्योंकि रिवीजन नहीं हो रहा है ना डेली बेसिस पे, हो क्या रहा है, यही सारी चीजें हो रही है तो वही तो होगा। हाँ सर, बस रिवीजन नहीं हो रहा है। जिस दिन आपने मेरा इंटरव्यू लिया उसके एक दिन पहले मैंने रिवाइज करा है, उसके बाद अब मैंने दोबारा टच नहीं करा है। अब वो तो सैटरडे होगा, संडे टच करूंगा। होगा। 5 तारीख तक का वेट कर रहा हूँ मैं, बस 5 तारीख के बाद फिर। आप तो आप तो अभी भी कर लोगे सर, महादेव सर को बुलाओ सर। महादेव सर के पास टास्क बहुत ज्यादा है, सर ने वापस ऑफिस वर्क बहुत ले लिए। महादेव सर को कैसे भी आप एक ही वहां पर हो ना सर, जगह पर, प्रदीप पाल सर, नहीं सर, महादेव सर से। महादेव सर तो टाटा स्टील में है ना। मगर आपका कुछ तो कनेक्शन है ना उनके साथ। वो पहले थे ना मेरी कंपनी में। एक्स बॉस है, हाँ आई थिंक। हाँ। हाँ, तो उनको बुलाओ सर। महादेव सर का रिवीजन जरूरी है, महादेव सर है अच्छे, रिवीजन नहीं होगा तो गलतियां होगी सर। छोटी छोटी गलतियां ऐसी होगी ना, ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुझे आता था, मैं नहीं बोल पाया। भी पता है क्या है सर, आप ओवर प्रिपेयर्ड हो रहे हो वाइवा के लिए। होना ही चाहिए। विदाउट रिवीजन ये प्रिपरेशन, हो जाएगी। नहीं नहीं, हो जाएगी हो जाएगी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ नहीं होगी। हाँ बट ये तू है ना, मैं था। जितना भी आप ये थॉट प्रोसेस लगा रहे हो ना, ये पता है वो शादी में जाने के बाद जब 100 मिठाई पकवान दिखते हैं ना, उसका एक का है वो, जो एक भी आप मुश्किल से चख पाओगे, नहीं चख पाओगे, उसका कोई स्वाद आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। ऐसा नहीं कहते हैं सर, रजत सर ये कहते हैं कि जब आप क्या बोलते हो, दही को मथते हो ना, दही को जब बहुत सारा वो किया जाता है ना तो मक्खन बनता है, और मक्खन में से फिर घी बनता है। ये वैसे ही एसेंस आएगी। कौन सा क्वेश्चन कब स्ट्राइक होगा ना आपको पता नहीं है, यहाँ पर जितनी भी डिस्कशन हुई ना, वो सर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऐसे मजा आ जाएगा। आएगा सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ इररेलेवेंट है, बट इस पे इतना ज्यादा फोकस ना हो जाए कि चीजें बाकी छूट जाए। हाँ तो ये भी डिस्कशन यहाँ पर ही हुआ ना, ये सारी चीजें हाँ होते ही, तो वो बस, उसका भी इम्पेक्ट आएगा। और हाँ हेलो सर। रिलैक्स जी रहो सर सर, बोलिए सर। कहाँ इतना प्रेशर ले रहे हो? सर जैसे लैंग्वेज इंग्लिश थी पेपर की, तो इंटरव्यू हम हिंदी में दे सकते हैं तो, या वो शुरू करेंगे, या वो क्या अपने है? तो हिंदी हिंदी वाले हैं सर, सर मेरी पूरी जिंदगी हिंदी में चली है। उनको क्या पता आप इंग्लिश में लिख के आए हो कि हिंदी में लिख के आए हो? सर क्या पता लैंग्वेज का सिस्टम हो वहाँ पर, हो सकता है हाँ हाँ उनके पास लिस्ट हो। हाँ सर, अगर आप साउथ से हैं वहां पर वो लोग शायद ये प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश वाला ही बंदा है हमारे पास। मेरा तो सर दिल्ली बट है। अगर, अरे सर बिंदास जाओ, चकते फड्डे, नप दे गिल्ली, उड़ा दे बादशाह, निकल गई बिल्ली। तो सर अगर वो इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होगा? आप हिंदी में समझना बात इंग्लिश में है, आप हिंदी में बोलो। वाई यू आर यूजिंग इंग्लिश सर, उसको सिर्फ वैसा कर दो ना, इंग्लिश कर दो। वो ज्यादा पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश है कभी, इस वजह से कि हाँ इंग्लिश में ही दो। अरे सर इतने इंटरव्यू, इतने लोग, अरे सर कितने, 99 से ज्यादा लोगों का क्लियर हुआ है पेटर्न एजेंट, उनमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं आई सर, आपको कैसे आ सकती है? हाँ सर, मैं यही थोड़ा सा कंफर्म कर रहा था। अब इतना तो प्रूफ आप मानते हो ना कि ये सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर बैठ रहे हैं, इनका क्लियर हुआ होगा। मेरी बात ना मानो, मगर वो दिख तो रहा है नहीं ना। सर, और इंग्लिश इंग्लिश हिंदी,
इंग्लिश कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम गौरव नहीं सर, है। यस सर। आप एक बात बोलूं, जब आप वाइवा देने बैठोगे ना, वो आपका पता भी नहीं चलेगा। आपको ये ध्यान ही में नहीं, समझ में नहीं आएगा आप हिंदी बोल रहे हो कि इंग्लिश बोल रहे हो, ये आप सोच ही नहीं पाओगे उस टाइम पे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपके कंफर्टेबल जोन में लेके जाएगा, भाई हिंदी बोल। और ये होगा, 99.99% होगा, क्योंकि क्योंकि वहां पर फिर आपका फोकस आंसर पे होगा। हिंदी हाँ, इंग्लिश पे हिंदी नहीं इंग्लिश होगा। पे नहीं होगा, फिर आपका फोकस होगा मैं अपना बेस्ट दूं। ओके सर। इसीलिए आपका जो प्रैक्टिस होता है ना यूज, इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ, मसल मेमोरी। लिखने की प्रैक्टिस करवाने के पीछे इसलिए नहीं था कि आपको रटवाने थे क्वेश्चन, लिखने की प्रैक्टिस के पीछे रीजन था मसल मेमोरी। क्योंकि जब आप हरीनेस में होते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है मसल मेमोरी पे। और आपको अगर डेली बेस पे हिंदी में बात करने की आदत है ना, तो आपको अपना बेस्ट देने के लिए आप अपने आप हिंदी में आ जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हो। जैसे अब उस दिन सांगवी मैम थे, मैं उनको बोला हिंदी बोलो, वो फिर दो शब्द हिंदी बोले, फिर इंग्लिश में चले जाए, क्योंकि उनका डेली का प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस में है इंग्लिश। बिकॉज शी इज बीन दुबई फ्रॉम लास्ट 15 years आई थिंक, नॉट 15 बट अब क्वाइट अ फ्यू ईयर, 5 to 6 years। तो उनको यूज टू है इंग्लिश बोलना, उनके लिए हिंदी मुश्किल है, क्योंकि उनकी मसल मेमोरी में इंग्लिश है। वो उनको बोलोगे भी ना हिंदी में आ जाओ, तो सबकॉन्शियसली इंग्लिश में चली जाएंगी वो यस। आप सोचो ही मत, ये आप पेरिफेरियल क्रिएट कर रहे हो अपने ऊपर, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी में सर वो होना वही है जो होना है। सबसे ज्यादा मुझे देख लो सर, मुझे तो हिंदी में बोलने में भी परेशानी है, इंग्लिश बोलने में भी परेशानी है। मैं डेली गुजराती में बात करता हूँ सभी लोगों के साथ, आपसे हिंदी में बात करता हूँ। और वो वरा प्रसाद सर को भी मैंने पढ़ा है, तो सोचो उनके साथ तो कैसे ही बात हुई होगी मेरी। तो हो जाता है सर, मैनेज हो हाँ जाता है। तो कम्युनिकेशन का मेन पर्पस है कि सामने वाले को मैसेज कन्वे होना चाहिए। इफ सर यू आर आपने एबल तो टू डू दैट, आ- इट्स अ गुड थिंग। आपने तो सर 3 3 लैंग्वेज सीख रखी है, मतलब हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, और यहाँ तो सर इंग्लिश ही नहीं सर सीखी है। हमें हमें सर बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपके पास जापानीज पर्सन भी आया ना, अगर मेरे भाई, मेरा जो छोटा भाई है और मेरे पापा भी है, काफी अडानी में ऐसे, ओके मैडम, और काफी ऐसे लोग होते हैं जो जापान से आते हैं यहाँ पर अडानी में काम करने के लिए, जापान से आते हैं, चाइना से आते हैं। हम्म। सर मेरे पापा लैंग्वेज जानते भी नहीं है, फिर भी उनको ड्राई फ्रूट्स बेच देते हैं। वो जानते ही नहीं, उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, पैसे लेना देना कुछ नहीं पता है उनको। इतना पता है, मेरे पापा को इतना पता है कि मेरे बेटों को खाना तभी मिलेगा जब मैं ये चीजें बेचूंगा तब, और वो बेच के आते हैं। ये सब सिंपल होता है। उनको चाहिए क्या, वो बादाम चाहिए, वो बादाम पहले दिखाएंगे, ऐसे बताएंगे चाहिए, ले ले भाई, कितना, वो देगा, उसमें से वो वापस देंगे और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करके बेच के आ जाएंगे। और सर ये हर एक पर्सन के ब्लड में होता है। अगर आपके जिंदगी में आपको चीजें करनी है तो करनी है, उसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है। सामने वाला जापानीज हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कोई भी हो, हम उसको दे के आएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा ना हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, तो हम उसको उसको भी पढ़ा के देंगे। भाई पढ़ तू, यही सेक्शन से पढ़ तू। हो जाता है सर। तो डोंट वरी, वो चीज हो जाएगी, जैसे रजत सर बोल रहे हैं, डोंट टेक प्रेशर। तो सर इंट्रो होता में है, हिंदी में दे सकते हैं, ओके सर। मगर आप ये आंसर से कन्विंस क्यों नहीं है वो मुझे पता नहीं चल रहा। बार बार आपको वही कहा जा रहा है कि सब दे सकते हैं, अरे फिर सर भी आप अपने आप से दिल्ली डाउट में है कि भाई मत दो। दिल्ली में तो जहाँ तक जो मैडम थी, वो भी क्लास में वो भी सब इंग्लिश इंग्लिश बोल रही थी, मतलब राजधानी है, क्या पता इंग्लिश ही ज्यादा प्रीफर करे है, ये लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गौरव सर का सर कौन सा साइड है? हाँ, मैम दिल्ली है मेरा, दिल्ली। ओके। गौरव सर, अश्विनी सर बेस्ट पर्सन दिल्ली के लिए। शायद आदि सर भी दिल्ली वाले ही थे ना। वो पेपर देने दिल्ली आए थे, पुणे से, हम्म, मुंबई से। फिर वो शिवम शंकर सर है ना अपने, तो दिल्ली वाले थे। अरे अखिल सर अभी दिल्ली में ही है। अखिल सर दिल्ली में है, उनसे बात कर लो। अखिल सर ने तो दो दो बार वाइवा भी दी है।
अखिल सर इतनी मौत, वैसे वो पैनलिस्ट में आना चाहिए, अखिल सर सारिका मैडम पैनलिस्ट में आना चाहिए, उनका पैनलिस्ट होना चाहिए। एक दिन उनका रखेंगे कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, इंसाइट्स तो वो भी है अपने लिए। सर तो सही है ना। मैं तो बोल ही रहा था, है ना जी बेटा? तो मिलते हैं कल वापस, कल नहीं परसों सुबह 7 बजे रिवीजन के साथ। अब 2 दिन रिवीजन के रखते हैं, फिर ट्यूसडे से वापस वाइवा का सेशन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जय हिंद एवरीवन, हैव अ थैंक यू नाइस डे। सर। जय हिंद सर। बेस्ट ऑफ लक सर एग्जाम के लिए। थैंक यू सर।